उन्होंने ते निकी बेन ने हाई कर दी तू। हाँ। हाँ सर, सू नाम थी जो तमें जी मान। एक बार रेज हैंड करो सर। My name is Mary and एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, एक
good afternoon, everyone. Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible. So, good afternoon, everyone. I, JC Dr. Nirav Majmudar, Vice President Training of JCI Baroda Alkapuri, in the capacity of Chairman of this training, which is on JCI National Day Uday, call this meeting to order. So, welcome all of you. Good afternoon for this session. I am sure you all are excited. Now, before we begin, I would request everyone to raise your hand till your shoulder for the JCI Creed and Mission. So, we begin the JCI Creed. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life, that the brotherhood of man transcends the sovereignty of nation, that economic justice can best be won by free men through free enterprise, that government should be of laws rather than of men, that Earth's great treasure lies in human personality, and that service to humanity is the best work of life. JCI mission to provide developmental opportunities that empower young people to create positive change. Thank you, everyone. Now, I request our dynamic and ever enthusiastic JCI President of Baroda Alkapuri, JCI Senator Kinnari Haryani, for the welcome address. Over to you, madam. Thank you, Chairman. Good afternoon, all. I welcome today's speaker, JC Ashok Gujjar, sir. He is a national trainer of JCI. I welcome all the participants कि आप सब आज हमारी एक नई मुहिम के खुल के सोचे आज जो सर्कमस्टेंसेस अभी हमारे पास है उसमें नहीं एग्जाम हो रही नहीं स्कूल जा सकते नहीं कोई प्रोग्रेस हो रहा है सो ये टाइम ड्यूरेशन में हम क्या चीज कर सकते हैं और क्या नए आयाम ये टाइम में हम तय कर सकते थे और तय करने के बाद उसके लिए हम लोग कोशिश करें और वो कोशिश से अपना फ्यूचर कैसे ब्राइट कर सकते हैं इसके लिए आज जेसी डॉक्टर नीरव मजमूदार एज वेल एज हमारे जो मेंबर है जेसी निरंजन गोलानी सर ने आज एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे दिया है एंड आई होप कि आप सबको ये प्रोजेक्ट के थ्रू बहुत सारी लर्निंग मिलेगी तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आई विल जस्ट एंड माय स्पीच ओवर हियर सो लेट्स लर्न लेट्स साइन एंड लेट्स मेक आवर फ्यूचर ब्राइट थैंक यू ओवर टू यू चेयरमैन सर Thank you so much, madam. We take this opportunity to introduce the dynamic and very famous speaker, and to do the honors, may I request our very beloved JCCA Niranjan Golani sir to give the introduction of today's speaker. Sir, over to you. Good afternoon, one and all. It gives me immense pleasure to introduce our own JC Ashok Gujjar sir to you all. All of you, Mr. Ashok Gujjar is the founder of Future Clue Training Institute company. Today, he is one of the very youngest and inspirational motivational speaker of Gujarat. Sir is qualified civil engineer from LD College of Engineering, which is one of the very reputed college of Gujarat. Sir is a certified trainer from JCI India. He has been functional in training for last 8 years. He was elected as president of JCI Surat Samrat chapter for year 2017. He has been awarded as the best motivational speaker in Educational Icon Award of 2019. Till today, lakhs of people have got benefited from the seminars and workshops in more than 22 districts of Gujarat, 6 million plus people on YouTube across 15 countries. He has conducted around 1700 plus seminars and webinars for a number of prestigious schools,
colleges, corporates, companies, and NGOs. His guidance has influenced more than 6 lakh students, 1.5 lakh parents, 30,000 plus teachers, working people, which have always brought changes into their lives. He has successfully motivated people to resolve their life and has been always on upfront to serve in several noble causes. With these words, I welcome our today's speaker, JC Ashok Gujjar sir. Sir, a warm welcome to you. Thank you, Niranjan bhai. Yes, my audio and video proper, sir? Yes, Yes, sir, it is absolutely perfect. Okay, good. Friends, आज की ये संडे मॉर्निंग सेशन, मतलब खुल के सोचे आज, टाइटल और आज का ये जो सेशन है पर्टिकुलर, मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि JCI इंडिया एक ऐसी संस्था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे स्टूडेंट्स, हर कोई स्टूडेंट्स, मतलब डिफरेंट एज के यहाँ पे स्टूडेंट है, लेकिन एक ही मास है, उसको हम कॉमनली स्टूडेंट कहते हैं। उम्र चाहे कोई भी हो, लेकिन JCI परिवार में जितने भी सदस्य है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स है। तो ये जो लाइफ में लर्निंग लेने का जो पार्ट है, और एक दिन हम पूरे साल में सेलिब्रेट करते हैं, एंड दैट इज 23 मई, जिसको हम कहते हैं नेशनल ट्रेनिंग डे। आज के इस नेशनल ट्रेनिंग डे पे JCI पर्टिकुलर जोन 8 और बड़ौदा का जो ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है, हमारे बीच निरंजन भाई है, किन्नरी मैम है, डायनेमिक, और जिनमें से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, वैसे ट्रेनर, वैसे पर्सनालिटी, जिसकी प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करें तो एक आध घंटा तो आराम से, जैसे मेरे बारे में 5 शब्द अगर निरंजन भाई ने कहे तो 5 मिनट में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन नीरव भाई के ऊपर अगर बात करनी हो तो मिनिमम एक आध घंटा प्रोफाइल के लिए चाहिए। तो वैसी पर्सनालिटी, वैसे शख्सियत आप लोगों को आपके चैप्टर में जो मिले हैं, वैसे नीरव भाई और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो मैं कहीं देख रहा हूँ, मेरी जो बात हुई है अकॉर्डिंग टू योर डेटा, 10th स्टैंडर्ड, 11th 12th साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट, कॉलेज के FY SY के भी स्टूडेंट्स आज हमारे बीच कहीं ना कहीं जुड़े हैं। तो खुल के सोचे आज, ये टाइटल रखने के पीछे जो पर्पस है, बहुत सारी बातें हमें करनी है हमारे पास। मैं हर वक्त गुजराती में એવું કહું છું કે સાગર જેટલો સમય છે ને સાગર જેટલી વાત છે। खुल के सोचे आज, दैट मीन्स कि सागर जितना बड़ा टॉपिक है, और आजकल की स्टूडेंट एज ग्रुप में हम जितने भी यंगस्टर है, मैं कहीं ना कहीं देखता हूं, क्योंकि काफी लास्ट 2 इयर्स से मैं बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट और यंगस्टर जो कहीं ना कहीं नई क्रिएशन की दिशा में आगे बढ़ रहे, वैसे मोर देन 155 स्टूडेंट से मैं मिला, 155 पर्सनालिटी से मैं मिला, और वहां से मुझे ये पता लगा कि आजकल यंगस्टर में, हम सब में कहीं ना कहीं जो लेकिंग वाला जो पार्ट है वो है सोच का पार्ट। ऐसा नहीं कि हम परफॉर्म नहीं कर रहे, ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि अक्सर मैं ये भी कहता हूं कि हम सबको भेजे के साथ भेजा है। तो ये बात कहीं ना कहीं साबित हो गई कि हमारे अंदर भेजा तो है ही भाई, क्योंकि भेजे के साथ तो भेजा है। लेकिन इस भेजे को यूज कैसे किया जाए, इस भेजे का मतलब दिमाग जो है वो दिमाग का यूज कैसे करे, वो हमारे ऊपर है। जैसे मर्सिडीज के अंदर आप वहां पे जो स्पीडोमीटर है, उस स्पीडोमीटर पे अगर देखें तो आपको 280 की स्पीड दिखेगी, 320 की स्पीड आपको दिखेगी, लेकिन 1 करोड़ रुपए देने के बाद आपको मर्सिडीज वो मिल जाती है, या BMW कार आपको मिल जाती है जिसकी स्पीड आप 320 तक जा सकते हैं, 320 तक स्पीड आप कर सकते हैं। लेकिन वो स्पीड मैनेज कैसे करना, आपको 60 पे चलाना है, 80 पे चलाना है, 100 पे चलाना है, 120 पे चलाना है, दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इसी प्रकार ईश्वर ने हम सबको भेजा तो दे दिया, लेकिन कितना बड़ा सोचना है, कितना हमें खुल के सोचना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। ईश्वर का दिया हुआ ये सोच, ये विचार, अब कितना एक्सेस हमें लेना है वो टोटली हम पे डिपेंड करता है। तो आइए, विदाउट टेकिंग मच मोर टाइम माय डियर फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी है कि मोर देन 170 स्टूडेंट्स आज हमारे बीच मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू बिकॉज़ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल वेबिनार एंड ब्यूटीफुल इवेंट। वरना संडे का दिन है, दोपहर मतलब 12 बजे है, तो लंच का भी टाइम है, कई लोगों का अभी तो मतलब मॉर्निंग का टाइम हुआ है, इसलिए मैंने आपको गुड मॉर्निंग कहा, क्योंकि संडे मॉर्निंग और स्पेशली बड़ौदा, तो आप राजकोट और बड़ौदा की पर्सनालिटी थोड़ी बहुत मिलती है, मतलब आराम रिलैक्सेशन टाइम वाले, और हमारे सूरत वालों का तो ये अभी लोचो का टाइम हुआ है, सो इसलिए हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, क्योंकि हमारे 11:30 12 बजे संडे में तो मॉर्निंग होती है। सो फ्रेंड्स,
बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, मैं चाहता हूं कि आप थोड़े बहुत पॉइंट्स अगर आपको कहीं क्लिक होते तो आप नोट डाउन भी कीजिएगा। और लास्ट 10-15 मिनट का जो पार्ट है, जो सेशन है, हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, क्योंकि यंगस्टर के साथ, यूथ के साथ क्वेश्चन आंसर करना ये मेरा पैशनेट टॉपिक रहा है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है। सो बीच में आप हैंड राइज करने की जरूरत नहीं है या क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। एंड में हम वो पार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। सो अब आप आराम से सुनिए और नजर यहां पे रखिए, क्योंकि वेबिनार में नजर हटी दुर्घटना घटी। और मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आपको यस या नो में देना है। यहां पे ध्यान रखिएगा, जिसका आंसर आपको यस और नो में देना है। ये कोई अनुपमा का शो नहीं है कि आपको इंटरेस्ट आता ही जाए, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लेना भी पड़ेगा, राइट। और ये कोई आपकी फौजी पबजी फ्री फायर की गेम भी नहीं है कि आपको कब वक्त निकल जाए पता भी ना लगे। आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट टाइप्स ऑफ वर्क, बट यहाँ पे आप नजर रखिएगा। सो जो भी आंसर आपका यस में है आप ऐसे मुंडी करिए, आंसर नो में है तो आप ऐसे मुंडी कीजिए, क्योंकि बोल तो आप नहीं सकते, मुंडी ऐसे करनी है और मुंडी ऐसे करनी है, राइट। सो फर्स्ट और ब्यूटीफुल जो पॉइंट है, मैं अभी मेरा 10 बजे जीपीएससी और यूपीएससी की जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं उसके साथ सेशन था। वहां पे मैंने एक क्वेश्चन किया कि भाई कितने ऐसे स्टूडेंट है जो ये जानते हैं कि हमें जिंदगी में अगर टॉप करना, मतलब मैं जीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं और मुझे जीपीएससी में टॉप करना है, तो मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। मैंने सिंपल क्वेश्चन किया कि राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। एक यूट्यूब चैनल पे लाइव प्रोग्राम था, तो सभी स्टूडेंट ने कमेंट शेयर किए। मैं शॉक रह गया कि भाई एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था जो स्टूडेंट से मिस हुआ। वहां पे सारे पॉइंट, सब पॉइंट स्टूडेंट ने लिख दिए। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, आज का काम आज करना चाहिए, गोल होना चाहिए, गोल के प्रति आप सीरियस होने चाहिए, पैशनेट होने चाहिए, डेडिकेटेड होने चाहिए, हमें प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए, हमारा टारगेट फिक्स होना चाहिए, हमें सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट होना, मतलब जो भी डिस्ट्रैक्शन है उससे दूर होना चाहिए, फार फ्रॉम सोशल मीडिया। ऐसे ऐसे पॉइंट लिखे जो मैंने भी नहीं सोचे थे। तो मैंने एक और क्वेश्चन किया कि भाई टॉपर बनने के लिए आपको क्या करना है, वो तो सब आपको पता ही है, तो फिर बन क्यों नहीं गए? खुल के सोचे आज, उसका मतलब क्या है? सोच तो हम हर रोज रहे, सुबह से शाम, ये 24 घंटा, जब तक हम सोते नहीं है रात को, तब तक हम सोचते रहते। फेसबुक पे, इंस्टा पे, किसी को फोटो पे जब हम लाइक करते तब भी हम कुछ सोचते। क्या सोचते? यू नो वेरी वेल, आई नो वेरी वेल, तो यहां पे बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन खुल के सोचे आज। पता तो है करना क्या है, लेकिन शुरुआत करना वो सबसे बड़ा पॉइंट है। स्टार्ट कर पाना यंगस्टर की लाइफ में, यूथ आफ्टर 10th, आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन, जितने भी स्टूडेंट्स आज कॉलेज के भी पार्टिसिपेट यहाँ पे FY, SY, TY जो भी आप कर रहे, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, जो भी फील्ड के रिलेटेड आप है, जो भी कर रहे, आप जो भी काम कर रहे हो, वो काम में अगर आप बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, प्रायोरिटी वाला पॉइंट है, एंड दैट इज स्टार्ट। शुरुआत करना वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण रखता है। पर आपने गुजरातियों की आदत में, जब लास्ट टाइम भी मुझे अवसर मिला था वडोदरा, जब हम एक स्कूल में निरंजन भाई और नीरू स्पॉन्सर बेस्ड जो प्रोग्राम्स था, JCI की इवेंट थी, वहां पे भी मैंने ये कहा था कि गुजरातियों की अपनी आदत કેવી છે, આરંભે સુરા, આપણે શરૂઆત તો કરી દઈએ પણ પછી બધા પૂરું, પછી મેળ પડતો નથી। सो स्टार्टिंग बहुत मैटर करता है। तो आज के इस सेशन में मुझे स्टार्ट के ऊपर आपको कुछ एक्सप्लेन करना है। आपको पता हो तो आज जैसे संडे है, वैसे ही लास्ट संडे भवन कच्छी करके एक बहुत बड़े राइटर है और माइंड ब्लोइंग लिखते हैं, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है भवन कच्छी जी की स्पेशली जो स्टोरी। तो गुजरात समाचार में रवि पूर्ति जो है, गुजरात समाचार में रवि पूर्ति जो हर संडे को आती है, लास्ट संडे की रवि पूर्ति में जो फ्रंट पार्ट था, एक स्टोरी लिखी थी भवन कच्छी जी ने। वो स्टोरी आज के यंगस्टर को बहुत लागू होती है। और ये स्टोरी क्या थी? एक मतलब उंदर के ऊपर, एक चूहे के ऊपर कहीं ना कहीं प्रयोग किया था। अमेरिका के अंदर इन द ईयर 1984 के अंदर पिटरन करके जो बहुत ही बड़े बायोलॉजिस्ट करके बहुत बड़े विद्वान रहे, उन्होंने एक प्रयोग किया। प्रयोग का सिंपल जो कंक्लूजन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक बाउल लिया, वो बाउल के अंदर पानी था और वो पानी के अंदर थोड़े बहुत चूहे वो पानी के अंदर डाल दिए। एक्सपेरिमेंट हुआ, और एक्सपेरिमेंट किस लिए हुआ और उसका क्या इंपैक्ट और क्या रिजल्ट मिला, कोविड के ऊपर समझाया था ये भवन कच्छी जी ने जो लेख लिखा उसके ऊपर। लेकिन यहां पे समझिए, यंगस्टर खुल के सोचे आज, वो पर्पस क्या है, महत्व क्या है। एक बाउल के अंदर पानी रखा, वो पानी के अंदर कई चूहे डाल दिए। थोड़ा टाइम हुआ तो थोड़े टाइम के बाद कई चूहे थे वो अपनी सांस
तोड़ के बैठ गए, मतलब कि दी एंड हो गया, वो पानी के एकदम नीचे आ गए, बाउल में एकदम नीचे। कई चूहे थे जो अभी भी फाइट कर रहे थे, वो बाउल के बीच वाले पोर्शन में, ट्रांसपेरेंट बाउल था तो बाउल के बीच वाले पोर्शन तक पहुंच गए। लेकिन कई चूहे ऐसे भी थे जो अपनी जान बचाने के लिए, सांस लेने के लिए वो मतलब तड़फड़ रहे थे। थोड़े टाइम के बाद अब जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पीटरन, उसे लगा कि बस अब ये टाइम एंड हो गया है, तो उन्होंने क्या कहा, जो 3-4 जो चूहे बचे थे उसको हाथ बाउल में डाल के उस चूहे को बाहर निकाल दिए, और बाकी जितने भी चूहे थे जो दी एंड हो गया उसको अलग बाउल में कर दिया। अब ये टाइम नोट कर दिया कि भाई 12-5 को मैंने बाउल के अंदर ये चूहे डाले और ये टाइम पे मैंने चूहे बाहर निकाले। अब ये जो टाइम पीरियड था, थोड़े बहुत वो चूहे को रिफ्रेशमेंट दे दिया और फिर से एक बाउल में सेम टाइप ट्रांसपेरेंट बाउल, उसके अंदर पानी डाला और फिर से ये चूहे, जो चूहे बच गए वो चूहे को फिर से वो पानी के अंदर डाला। अब ये चूहे के अंदर एक उम्मीद जग गई कि जब हम मरने वाले थे तब कोई फरिश्ता आया और हमें उठा के बचा लिया। तो अब ये प्रयास तो कर रहे, लेकिन उसके अंदर एक उम्मीद है, उसके अंदर एक सोच है, वो खुल के कहीं ना कहीं पानी के अंदर सोच रहे हैं कि कोई फरिश्ता आएगा और हमें उठा के ले जाएगा। अब इस बार जो लेखक जो लिख रहे हैं वहां पे, भवन कच्छी जी ने लिखा, जो एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, जब चूहे को बाहर निकाला, वो जो टाइम था, वो टाइम ऑलमोस्ट लास्ट वाले टाइम से 1.5 गुना था। माय डियर फ्रेंड्स, चूहे वही है, पानी वही है, बाउल वही है, लेकिन आप अगर जीने की सोच रखते हैं, अगर आप बचने की सोच रखते हैं, अगर आप कुछ बड़ा करने की सोच रखते हैं, तो हम कर पाते हैं। अगर सोच से ही हम हार गए, अगर सोच से ही हम थक गए, तो वहां पे ही हमारा दी एंड हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे यंगस्टर, बहुत सारे स्टूडेंट को जो 10th के अंदर जिसको भी मास प्रमोशन मिला, और अभी 12th वाले स्टूडेंट ये फाइट कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें भी मास प्रमोशन मिलेगा। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली कहा है कि 12th को मास प्रमोशन नॉट पॉसिबल, और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉलेज के अंदर एडमिशन या आफ्टर 12th साइंस के स्टूडेंट जेडब्ल्यू मेंस, जेडब्ल्यू एडवांस, नीट, अलग अलग एग्जाम्स, आर्किटेक्ट वाले के लिए नाटकीय एग्जाम्स, सीएस, पूरा मतलब जो है वो तंत्र मैनेज नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो 12th की एग्जाम, हाँ, हालांकि अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई कि कब हम वो एग्जाम्स को कंप्लीट करेंगे, लेकिन एक चीज तो यहां पे है कि आपको टू बी कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी सी स्टोरी मैंने अपने यूट्यूब के वीडियो में शेयर की थी, इंद्रदेव की स्टोरी। शायद कई स्टूडेंट ने अभी तक वो स्टोरी ना सुनी हो, तो मैं शॉर्ट में यहां पे शेयर कर दूं। जो आपके दिमाग में, जितने भी स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि सर एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो उसके बाद प्रिपरेशन करें ना, सर एग्जाम आने वाली ही नहीं है तो प्रिपरेशन करके क्या फायदा। तो वैसे सभी स्टूडेंट के लिए ये आंसर है। एक गांव में एक बार इंद्रदेव ने सब खेडूत को, मतलब जो जितने भी फार्मर थे, उसको श्रापित कर दिया कि आपके गांव में आने वाले 12 साल तक बारिश नहीं होगी। इंद्रदेव ने श्राप दे दिया कि आपके गांव में 12 साल तक बारिश नहीं होगी। अब इंद्रदेव का श्राप है तो मानना तो पड़ेगा, वो लगेगा, पक्का है। लेकिन वो जितने भी फार्मर थे, वो पूरा एक ग्रुप होकर इंद्रदेव की प्रार्थना की, इंद्रदेव को रिक्वेस्ट किया, विनती की कि इंद्रदेव मान जाइए, हमारी गलती हो गई, माफ कर दीजिए, हम आपके ही बच्चे, हमें माफ कर दीजिए। इंद्रदेव बोला, तीर से निकला हुआ जो कमान से निकला हुआ जो तीर है और मेरे जो श्राप है वो मैं कभी वापिस नहीं लेता, लेकिन आप इतनी विनती कर रहे, आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे, तो मैं एक काम कर सकता हूं, और वो काम ये है कि मैं भोलेनाथ जी को रिक्वेस्ट करता हूं और आप भोलेनाथ जी को रिक्वेस्ट कीजिए, और भोलेनाथ अगर डमरू बजाए तो बारिश होगी। अब ये इंद्रदेव बहुत चालाक थे, उसे पता था कि ये फार्मर भोलेनाथ के पास भी जाएंगे, लेकिन भोलेनाथ को पहले से कॉल कर दिया कि भोलेनाथ आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, लेकिन उसे एक्सेप्ट मत कीजिएगा वरना अपनी नहीं बनेगी। तो भोलेनाथ ने कहा नहीं यार, आपका तो हम मानेंगे। फार्मर गए भोलेनाथ के पास, वहां पे रिक्वेस्ट की, विनती की, लेकिन भोलेनाथ एक के दो नहीं हुआ क्योंकि इंद्रदेव का प्रेशर था। भोलेनाथ ने साफ साफ ना बोल दिया कि भाई मैं डमरू नहीं बजाऊंगा और बारिश नहीं होगी, आप 12 साल इंद्रदेव के श्राप को आप वेट कीजिए और 12 साल के बाद आप बारिश होगी। तो सब फार्मर को ऐसा लगा कि अब बारिश नहीं होगी, मतलब खेत करने की कोई जरूरत नहीं है, खेत करे तो करे कैसे, बारिश तो होगी नहीं, पानी तो है नहीं, तो खेत पॉसिबल ही नहीं है। तो सब लोगों ने अपने अपने जो भी हो सकते थे वो काम बिजनेस करने शुरू कर दिए। लेकिन उसी गांव में, ध्यान से सुनिएगा, उसी गांव में एक फार्मर था जिसे आप पागल बोल सकते हैं। वो फार्मर लगातार खेत कर रहा था,
सुबह जाना शाम को आना, वही खेत का कार्यक्रम करना। लेकिन बारिश होती नहीं थी, गांव में पानी नहीं था, पानी का कोई स्टोरेज नहीं था, तो खेत होती नहीं थी। लेकिन सुबह जाता था, शाम को आता था, पूरे साल पूरी शिद्दत से वो खेत करता था। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल, 4 साल, और 5वें साल में वो गांव के जो मुखिया, जो खेत मतलब जिसकी बहुत ज्यादा खेत थी, वैसे गांव के मुखिया थे, वो उसके घर गए कि भाई पागल है क्या, समझ में नहीं आती बात कि इंद्रदेव 12 साल तक बारिश नहीं देने वाले, 12 साल तक बारिश नहीं होगी, तो क्यों मेहनत मजदूरी कर रहा है, खामखा 5000 रुपए जो बचाए वो भी जाएंगे, आप उससे अच्छा है 12 साल तक कुछ काम कर लो। वो खेडूत ने, वो फार्मर ने बहुत अच्छी बात शेयर की कि भाई मुझे भी पता है कि 12 साल तक, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, अब आप आंसर आ रहा है, कि मुझे भी पता है 12 साल तक बारिश नहीं होगी, फिर भी मैं 5 साल से लगातार खेत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं खेत छोड़ दूं तो कहीं मैं खेत करना भूल न जाऊं। मुझे डर है कि 12 साल के बाद बारिश होगी तो मुझे खेत आएगी कि नहीं आएगी। और ये बात पार्वती जी ने सुन ली, और पार्वती जी को भी डर लगा कि यार बात तो सच है, ये फार्मर सच कह रहा है। भोलेनाथ भी अगर 12 साल तक डमरू नहीं बजाएंगे तो भोलेनाथ भी डमरू बजाना भूल गए, तो पार्वती जी भोलेनाथ के पास गए कि सुनते हो, 12 साल तक आप डमरू नहीं बजाओगे तो डमरू बजाना भूल गए, तो 5 साल तो हो गए आपने डमरू तो बजाया नहीं। भोलेनाथ ने सोचा राइट है, चलो देख लेता हूं, भूल तो नहीं गया। और इस प्रकार से देखा, डमरू बजा, और भोलेनाथ ने जैसे कहा था कि जब डमरू बजेगा तब बारिश होगी, और गांव में बारिश हो गई। गांव में सिर्फ एक ऐसा पागल जो ये फार्मर था जिसकी खेत रेडी थी, बहुत मबलक पाक हुआ और बहुत अच्छा प्रॉफिट एक फार्मर ने किया, और बाकी सारे लोग सोचते रह गए। माय डियर फ्रेंड्स, अभी का जो टाइम है ना, वो सभी स्टूडेंट एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं और टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इनमें ऐसा कोई पागल सा होगा जो अभी भी प्रिपरेशन करेगा, लेकिन रिजल्ट उसका ही अच्छा निकलेगा जो अभी पागल कहलाता है। अभी आप जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अरे आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, 12th कॉमर्स की एग्जाम्स डेट डिक्लेयर नहीं हो रही है, आप कोई भी कोर्स जो आपको फर्दर अगर सीए की कोचिंग करनी है, सीए में जाना है, आपको सीए करना है, तो आप उसकी प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए, आप अपने कॉन्सेप्ट को फोकस कीजिए, क्योंकि सीए हो या सीएस हो उसका बेस तो 11th 12th से ही निकलेगा। तो आप अभी वो सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, शुरुआत कीजिए, समय को ऐसे व्यर्थ मत कीजिए। और इसी बात के साथ आज का ये जो हमारा पहला जो पॉइंट है, स्टार्ट माने जो पहला और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, एंड दैट इज सेल्फ कंट्रोल। अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आप भी खुल के सोचना चाहते हैं, तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ऐसे मोटिवेशन प्रोग्राम के बाद हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं कि अब से मैं ये करूंगा, कल सुबह में 5 बजे उठ जाऊंगा, अलार्म बजता है, सुखाराम उठता ही नहीं है। ये हर रोज का कार्यक्रम है। आप मुझे बताइए, हमने कितनी बार टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल बना बना के हम थक गए, लेकिन आज तक जिंदगी में नॉट अ सिंगल डे हमने अप्लाई नहीं किया। तो टाइम टेबल बनाना एक्सपर्टाइजेशन नहीं है, टाइम टेबल जो भी बना है उसको फॉलो करना वो एक्सपर्टाइजेशन है। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स कि आप सेल्फ कंट्रोल कर पाए। अगर आपके पास अपना खुद का एक्सीलेटर और गियर और ब्रेक अपने हाथ में नहीं है, तो आपकी गाड़ी भले ही मर्सिडीज हो, आपकी गाड़ी भले ही बीएमडब्ल्यू हो, आपकी गाड़ी भले ही क्यों शानदार ना हो, लेकिन वो एक्सीडेंट जरूर करवाएगी, क्योंकि ड्राइवर के हाथ में वो एक्सीलेटर, ब्रेक और गियर होना जरूरी है। रफ्तार आपके हाथ में होना बहुत जरूरी है, सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ये पूछते हैं, सर सेल्फ कंट्रोल करे तो करे कैसे? चलो हमें भी करना है सेल्फ कंट्रोल, उसका एक ही सिंपल सॉल्यूशन है, और वो है डिसिप्लिन। सेल्फ कंट्रोल पॉसिबल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन से। आप अपने कई रूल्स बनाइए, आप अपने कई नियम बनाइए, उस नियम को आप फॉलो कीजिए, सेल्फ कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी कल एक टॉपर स्टूडेंट से मुलाकात हुई जो डिवाइसो का अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उनमें पूरे गुजरात में 4th रैंक लाया वो स्टूडेंट। आप ध्यान से सुनिएगा ये एग्जांपल। इससे पहले उन्होंने एक एग्जाम दी थी एसटीआई की, वो एसटीआई की एग्जाम में उसका रैंक था 127 रैंक। तब भी मैंने उसका इंटरव्यू लिया था, और इस बार डिवाइसो का जो रिजल्ट आया आपको जानकर शॉक लगेगा। सावन, वो लड़के का नाम है, उसका रैंक है 4th, सावन रयानी।
जो नवसारी से बिलोंग करता है, सावन रैयानी डिवाइसो में पूरे गुजरात में 4th रैंक। एक एग्जाम उसमें रैंक है 127 और बाद में आने वाली एग्जाम उनमें रैंक है 4th रैंक। मैंने सावन जी को इंटरव्यू में पूछा, मेरे चैनल पे इंटरव्यू भी है, अशोक गुज्जर मेरी यूट्यूब चैनल है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। मैंने सावन जी को एक क्वेश्चन किया, मेजोरिटी यंगस्टर है, मैं एग्जाम्पल के साथ बात शेयर कर रहा हूं। सावन जी से मैंने पूछा कि हाउ इट इज पॉसिबल 127 रैंक से डायरेक्ट 4th रैंक, हाउ इट इज पॉसिबल? उन्होंने आंसर में सिर्फ एक ही बात बताई, सेल्फ कंट्रोल से पॉसिबल हुआ। मेरी एक आदत थी सोशल मीडिया में, फेसबुक इंस्टा पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था। मैंने एक रूल्स बनाया, एक डिसिप्लिन में मेंटेन किया कि रात को 30 मिनट में सोशल मीडिया का यूज करूंगा, उसके बाद में सोशल मीडिया को टच भी नहीं करूंगा। एवरी डे 30 मिनट सोशल मीडिया, वो भी रात को 9 से 9:30 डेट सोल, उसके बाद नो सोशल मीडिया। बात समझ में आ रही है माय डियर फ्रेंड्स? जब तक आप अपने सेल्फ के रूल्स नहीं बनाएंगे तब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा, जब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक आप गाड़ी को ब्रेक नहीं लगा सकते। और बिना ब्रेक की गाड़ी की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, वो कभी भी एक्सीडेंट करवा सकती है, और कितना बड़ा एक्सीडेंट करवाएगी वो आपको नहीं पता, राइट? सो फर्स्ट पॉइंट आप यहां पे लर्न कीजिए, वो है सेल्फ कंट्रोल। इफ यू आर अ 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट तो सेल्फ कंट्रोल बहुत मैटर करता है। इफ यू आर अ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, जस्ट अ सेकेंड, प्लीज बी विथ अस फॉर 2 minutes. अशोक सर वापस कनेक्ट कर रहे हैं, जस्ट वेट फॉर 2 minutes. We request all to be with us. Please 2 minute रुकिए। तब तक जो अशोक सर ने पॉइंट बोला है, कैन वी जस्ट लिस्टेड, क्या हम वो नोट बना सकते हैं, हमें कहाँ सेल्फ कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है? ऑलरेडी शायद टाइम टेबल आपने बनाया होगा, बट क्या आप वो फॉलो कर सक रहे थे? व्हाट वर द प्रॉब्लम्स? एंड आपके क्वेश्चंस अभी से नोट करो। एट द एंड ऑफ दिस सेशन हम क्वेश्चंस भी लेंगे। There is some network issue with Ashok sir, so he will be joining in just 2 minutes. Please utilize this 2 minutes. Just write your questions. और दूसरा, whatever he has said कि हमें कहाँ restraint की जरूरत है, कहाँ self control की जरूरत है, कहाँ हम time waste कर रहे हैं, please note those things. So in just 2 minutes we will begin. Please bear with us for 2 minutes. Thank you.
Sir is with us. He'll just begin now. मनीष भाई वीडियो. Sir, welcome back. Yes. हम आपको सुन पा रहे हैं. आपका You cannot start your video because the host topic. हाँ सर, हम आपको हाँ. सुन रहे हैं. वहां से एक्सेस कीजिए ना वीडियो के लिए सर. ओके ओके. Kinnari ma'am, you are the host of the meeting. You can request him for. Got it. Yes, yes, done. Perfect. Okay. Friends, sorry for आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ. टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऐसा होगा. सो फर्स्ट एंड ब्यूटीफुल पॉइंट जो हमने बात डिस्कस की, सेल्फ कंट्रोल. तो सावन रैयानी का मैंने एग्जांपल दिया, 127 रैंक से 4th रैंक पे आया जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ कंट्रोल. आप जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अभी जो भी लेवल पे है, वहां से आप ग्रो कर सकते हैं अगर आप सेल्फ कंट्रोल अप्लाई करें. तो आप खुल के सोच रहे हैं, लेकिन वो सोच रिजल्ट तभी आपको दिला पाएगी जब आप सेल्फ कंट्रोल है. सबसे पहले तो खुल के सोचना जरूरी है, लेकिन खुल के सोचने के बाद भी अगर आप ये सेल्फ कंट्रोल को अप्लाई नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा. वैसा ही सेकेंड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है, स्टार्ट को स्पेलिंग को ही लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं. ये गेम देखते ही मेजॉरिटी स्टूडेंट, ये पिक्चर्स देखते ही मेजॉरिटी स्टूडेंट एक्साइटेड हो जाते हैं, राइट? अच्छा, ये किसका पिक्चर है, कौन सी गेम का? यस, वंडरफुल. पबजी के जाने के बाद जितने भी स्टूडेंट गम में थे, मतलब मैं आपको बताऊं कि कोई कॉलेज के स्टूडेंट, FY SY के स्टूडेंट को अगर कोई गर्लफ्रेंड छोड़ के जाती है और जितना दुख होता है, वे उससे भी ज्यादा दुख पबजी जब गई तब हुआ. लेकिन आप सभी को संभाला ये फ्री फायर ने, और आप संभल भी गए. जो फ्री फायर जो गेम है, मैं आपको बताऊं क्योंकि बहुत सारे फ्री फायर के प्रेमी लोग यहां पे होंगे. लाइफ इज नथिंग, आप ऐसा मान के चलिए कि फ्री फायर है. ईश्वर ने हमें इस मैदान पे उतारा है कहीं ना कहीं, ये जैसे हम गेम जैसे क्रॉस करते हैं और विनर होते, विनर बनने के लिए. लेकिन जब फ्री फायर खेलते हैं और कितना कंसंट्रेशन के साथ ध्यान रखते, हमें वहां पे गेम में किसी और को मारना तो है ही, लेकिन हमें कोई मार के ना चला जाए उसका भी ध्यान रखना है. तो सेल्फ कंट्रोल से ये पॉसिबल होगा. आपकी नजर चारों दिशा पे होनी चाहिए. आपके फ्रेंड्स जो है वो कहीं ना कहीं, आप वो फ्रेंड्स के साथ जुड़ के, आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो कहीं ऐसा गलती से सिलेक्ट तो नहीं हो गया कि आप अपनी मंजिल से दूर चले जा रहे हो, आप अपने टास्क से दूर चले जा रहे हो, कि आप कहीं गलती से ऐसा तो काम नहीं कर रहे कि आपके गोल से आप दूर चले जा रहे हो, राइट? और गेमी प्रेमी लोगों से मुझे एक ही चीज कहनी है कि कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू. जितने भी लोगों दिन में 2 से 3 घंटा जो भी गेम खेलते, उस सभी स्टूडेंट को, सभी यंगस्टर को मैं कहना चाहता हूं कि ये फ्री टाइम नहीं है, लेकिन ये गेम फ्री है. अगर आप इसी गेम को इतना खेलते हो, मतलब एक बात तो तय है कि आपको गेम खेलना पसंद है. तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, आने वाले कल में आप गेम डेवलप करने में अपना करियर बनाए, क्योंकि गेम खेलने वाले रोड पे आते हैं और जो गेम डेवलप करता है वो करोड़पति पे आते हैं. तो नाउ चॉइस इज योर, आपके हाथ में है. आपको करोड़पति होना है कि गेम खेल के आपको रोडपति होना है. सो ये सेल्फ कंट्रोल का एक एग्जांपल था. इसके साथ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है, और सेकंड जो पॉइंट है, स्टार्ट का स्पेलिंग आप याद रखिएगा. जो शुरू हमने जहां पे किया था वहीं पे हम खत्म करेंगे. एस में सेल्फ कंट्रोल. अब है सेकंड लेटर जो है टी. टी माने ट्रस्ट. के सोच आप तभी पाएंगे जब आपको आपकी सेल्फ पे ट्रस्ट होगा. मैं आपको कई एग्जांपल शेयर करूंगा, वो एग्जांपल से आप बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे. यहां पे स्क्रीन पे आप देखिए, एक जो बंदा, शायद आप सब लोग इसे पहचानते होंगे, इज नन अदर देन, हु इज दिस? यस, तेरी मेरी रानू मंडल, जो पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलर कर दिया, हिट कर दिया, हिमेश रेशमिया. जब ये करियर की शुरुआत की, अगर आप उसे गाने सुने, लोग ऐसा कहते थे कि भाई ये तो नाक से गा रहा है. आप बात समझ रहे हो? नाक से गा रहा है. अरे भाई, नाक से गाओगे तो आप हिट नहीं होगे, आप गले से गाओ. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हार्ड वर्क, डेडिकेशन और लगातार प्रयास के बाद आज हिमेश रेशमिया एक ऐसे मुकाम पे है जहां पे सिंगर फील्ड में, सिंगिंग फील्ड में ये शख्स का ये एग्जाम्पल क्रिएट हुआ है. तो पॉइंट इज दैट दुनिया को विश्वास नहीं था. यहां पे मैं क्या समझाना चाहता हूं, समझिए. हिमेश रेशमिया की जो सोच थी
उसकी जो सोच, जो खुली हुई सोच थी, जो खुल के उन्होंने सोचा था, उस पे सिर्फ और सिर्फ हिमेश रेशमिया को ट्रस्ट था, दुनिया को नहीं था। आपको और मुझे ट्रस्ट नहीं था, लेकिन हिमेश रेशमिया को था, और आज इसलिए वो बने। हमारे साथ उल्टा होता है, हमें अपने आप पे विश्वास नहीं है, दुनिया को होता है। जब हम 12th में होते तब पेरेंट्स को, टीचर को, बड़े भाई को, बहन को, सबको ये ट्रस्ट होता है कि यार ये फोड़ देगा, ये जेडबल नीट क्रैक कर देगा, ये कॉमर्स अच्छा रिजल्ट लाएगा, A1 ग्रेड। दुनिया को विश्वास होता है हम पे, हमें ही नहीं होता। अगर कोई सुबह आके बोल दे यार तेरा A1 ग्रेड पक्का है, अरे कोई मिला नहीं है क्या सुबह से तुझे? बात समझ में आ रही है? हमें खुद पे जब ट्रस्ट नहीं होगा, सेल्फ ट्रस्ट नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। आओ कई और एग्जांपल जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग इंडियन क्रिकेट टीम में एक ऐसे मोड़ पे, एक ऐसे टाइम पे, जब इंडियन क्रिकेट टीम में वीरेंद्र सहवाग आए थे और जो बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लोग कहते हैं कि भाई अगर पवन को भी जाना हो ना तो वो भी रुक जाते हैं कि भाई रुक जा जरा, सहवाग जी बैटिंग कर रहे हैं, एक आध चौके छक्के देखने के बाद हम जाए। जब सहवाग जी की जो बैटिंग की स्टाइल थी, मतलब उसकी जो लेग मूवमेंट, उसकी जो पैरों की जो मूवमेंट रहती, वो स्ट्रक वहीं पे रहते थे, और बॉडी मूवमेंट ज्यादा रहती थी, पैर की मूवमेंट वो इतनी ज्यादा नहीं करते थे एज कंपेयर टू अदर प्लेयर। उस जमाने में वो कहीं ना कहीं ये थोड़ी अजीब सी स्टाइल थी, तो लोग ऐसा मानते थे ये सब प्लेयर चलेंगे नहीं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमें आज पता है कि सहवाग जी ने अपने करियर में कौन सा मुकाम हासिल किया। दुनिया को विश्वास हो या ना हो, आपकी सोच पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। टाइम चाहे कितना भी, ये कोविड है, कोविड गया तो म्यूकरमाइकोसिस की चर्चे होने लगे, म्यूकरमाइकोसिस से आज हम डर रहे, कोविड से ज्यादा म्यूकरमाइकोसिस और है, प्रैक्टिकली है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये भी जाएगा, कुछ और आएगा। पॉइंट इज दैट कि हमें हम पे कितना ट्रस्ट है, हमें हम पे कितना विश्वास है, वो बात मैटर करती है कि हमारी सोच रियलिटी में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी। एक और ब्यूटीफुल एग्जांपल है, आपको बहुत मजा आएगा। मैं कोई पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, भाजपा, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, लेकिन एक एग्जाम्पल है जिससे हमें सीखना जरूर चाहिए। एक ऐसा शख्स जो अरविंद केजरीवाल जी, एक ये टाइम था कि लोग जूते फेंक रहे थे, लोग उसके ऊपर इंक फेंक रहे थे, लेकिन दुनिया को विश्वास नहीं था कि ये बंदा कुछ करेगा। लेकिन केजरीवाल जी को अपने आप पे विश्वास था, उसे अपनी खुली हुई सोच पे, जो खोल के जो सोचा, जो आज ये दिमाग के ढक्कन सब खोल दिए, अपनी सोच की कोई लिमिट नहीं रखी, और जो बड़ी सोच बनाई, ये अपनी सोच की लिमिट को खोल दिया और जो सोचा, और आज वो दिल्ली के यंगेस्ट सेकंड सीएम है। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आपको अपने आप पे ट्रस्ट नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। एक और एग्जांपल है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने इंटरव्यू में एक बात शेयर की कि जब मैंने अपने परिवार के सामने पहली बार ये ख्वाहिश रखी, जब मैंने पहली बार ये एक सोच रखी अपने परिवार में। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, जेसीआई आज इस प्रोग्राम का आयोजन इसलिए कर रहा है, नेशनल ट्रेनिंग डे की ओर से हम लोग इसलिए आज ये आयोजन कर रहे हैं क्योंकि यहां से मेजॉरिटी यंगस्टर की लाइफ पे इंपैक्ट हो सकता है, मेजॉरिटी यंगस्टर की लाइफ यहां से चेंज हो सकती है। आज जो नीरू क्लास इतना हमें सपोर्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि नीरू क्लास की भी जो सोच है, निरंजन भाई की और समग्र जो उसकी जो टीम है, उसकी भी ये सोच है कि कुछ हो या ना हो, लेकिन यंगस्टर की सूरत और शकल और सोच जरूर बदलनी चाहिए। इस मिशन और विजन को लेकर आज ये संस्था, आज ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है माय डियर फ्रेंड्स। और वडोदरा में नहीं, लेकिन गुजरात में सीए और सीएस की फील्ड में, और पर्टिकुलर जो सीए की फील्ड है, उनमें स्टूडेंट कि एग्जाम्पल सेट कर सके, वैसा रिजल्ट आज निरंजन भाई और पूरी जो नीरू क्लास की जो टीम है वो एग्जाम्पल क्रिएट कर रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जब अपनी सोच परिवार के सामने रखी कि मुझे बॉलीवुड में जाना है, तब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने शेयर किया कि परिवार के लोग हंसते हुए बंद नहीं होते थे। मतलब इतनी हंसी उसे आई कि यार शकल देखिए अपनी, और बात भी सच है, बॉलीवुड में जाना हो तो शकल चाहिए, मतलब हैंडसम चेहरा चाहिए, थोड़ी बहुत सिक्स पैक बॉडी चाहिए, थोड़ी बहुत फाइनेंशियल बैकग्राउंड चाहिए। ये तो आप जेब में हाथ ना लो तो रुमाल के सिवा कुछ निकले नहीं, पैसे तो होने चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, कॉन्टेक्ट चाहिए, नाम चाहिए, थोड़ा लुक चाहिए, और उनमें से कुछ भी नहीं है। एक भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि ये बॉलीवुड में चले। ना चलने की, फ्लॉप होने की सारी कैरेक्टरिस्टिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अंदर आज से 20 साल पहले थी, लेकिन फिर भी अपनी सोच पे ट्रस्ट था। माय डियर फ्रेंड्स, पॉइंट को समझिएगा, अपनी सोच पे ट्रस्ट था, अपनी जो बड़ी जो सोच थी वो बड़ी सोच पे ट्रस्ट था, और 18 साल लगातार मेहनत करने के बाद यही नवाजुद्दीन सिद्दीकी बिफोर आफ्टर आज हम सब देख सकते हैं।
एक एक मूवी जो आज की तारीख में लॉन्च हो रहे, वो हर एक मूवी में एज अ हीरो के रोल पे आ रहे हैं। दुनिया आपको हीरो मानती है कि नहीं मानती है, डजंट मैटर। आप अपने आप को आईने में देख के हीरो मानते हैं कि नहीं मानते हैं, दैट्स मैटर। दुनिया मानेगी और आप नहीं मानेंगे, आप जीरो के जीरो रहेंगे, चाहे कितने भी बापू कांटेक्ट क्यों ना हो आपके, कोई नहीं आएगा बचाने को। आपकी हालत भी वो चूहे की तरह ही होगी, आप मरेंगे पक्का है। माय डियर फ्रेंड्स, इस तगड़ी कंपटीशन के अंदर अगर हमें टिकना है, अगर हमें अपने नाम को कायम करना है, अगर हमें अपना खुद का एग्जाम्पल सेट करना है, तो अपनी सोच पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। स्टार्ट का ये सेकंड जो लेटर है, एक ब्यूटीफुल और एग्जाम्पल के साथ में इस ट्रस्ट को कंक्लूड करके आगे जाना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी, जब अंग्रेज सरकार ने जब ट्रेन से धक्के मार के निकाले, उस वक्त के जो बापू थे मोहनचंद करमचंद गांधी, एक ख्यातनाम जो लॉयर के फील्ड में जो एक बेस्ट अपना परफॉर्म कर रहे थे, वहां से उठकर अपनी सोच, आप सोचो कि वो जमाने में जहां पे अगर सांस भी लेनी हो तो अंग्रेज सरकार की परमिशन चाहिए, उस जमाने में ये सोचना कि देश को मैं आजादी दिलाऊंगा, एक अकेले इंसान की सोच, एक बड़ी सोच, और सोच के ऊपर थब्बा लगा ट्रस्ट का, और आज महात्मा गांधी जी ने वो रियलिटी हासिल, हम सब एग्जाम्पल देख सकते हैं। सो पॉइंट इज दैट माय डियर फ्रेंड्स, आप सोच तो बढ़ा रहे हैं, पहले तो ये सोचना जरूरी है, उस पर सेल्फ कंट्रोल है, उस पर क्या ट्रस्ट है, क्या ये दो चीज अगर आपके पास है तो माय डियर फ्रेंड्स आइए देखते हैं, क्योंकि ये जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तीसरा जो पॉइंट है, एंड दैट इज एनालिसिस। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट अपनी लाइफ में फेल इसलिए होते हैं कि लगातार वो एनालिसिस नहीं करते। एनालिसिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या ऐसा हो सकता है कि आप सुबह 1 घंटा फ्री और एक ही साथ पूरे दिन का सांस ले सकते? 1 घंटा फ्री हूं ना यार, ले लेता हूं सांस, 24 घंटे लेने की क्या जरूरत है, 1 घंटा ले लो बैठ के। इट इज पॉसिबल? नहीं। अगर जीना है तो सांस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अगर सफल होना है तो सेल्फ एनालिसिस द कंटिन्यूअस प्रोसेस। एवरी टाइम अपने आप का एनालिसिस कीजिए। आप कौन से सब्जेक्ट में वीक है, आप कौन सी स्किल में वीक है, आपके पास कौन सी स्ट्रेंथ है, आपकी कौन सी स्किल ऐसी है जिससे आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, आप कौन से सब्जेक्ट में कई स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर मेरा मैथ्स बहुत कमजोर है। भाई मैथ्स कमजोर नहीं है, तू कमजोर है। बात को समझ, अगर मैथ्स कमजोर होता तो किसी के भी 100 आउट ऑफ 100 नहीं आते, मेरे 60 आ रहे, दैट मींस मैं कमजोर हूं। अब पूरा मैथ्स में मैं पूरा कमजोर नहीं होता, कोई कोई टॉपिक ऐसे होते हैं जो मुझे टफ लगते, बाकी तो मैथ्स मेरे लिए इजी है। तो वो एनालिसिस जब आप करेंगे तब आपको पता लगेगा। और आजकल एक दौड़ लगी है, एक सोच ऐसी बन गई है मार्केट में, कई लोग क्या करते हैं पता है, ये 5 जो फ्रेंड, जो 10वीं क्लास के जितने भी स्टूडेंट है, जो 5 फ्रेंड वो डिसाइड करते हैं यार तू क्या ले रहा है, साइंस, तू साइंस, तू साइंस, अपने का क्या सोचना। जब ये तीनों साइंस में जा रहे तो अपने भी साइंस में चले। अब ये कोई मेले में जाने की बात है क्या? करियर बनाना है आपको, आपको नहीं पता, अनजाने में लिया हुआ एक करियर का रॉन्ग डिसीजन आपकी जिंदगी को दी एंड कर सकता है, आपकी लाइफ को दी एंड कर सकता है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल दूं। 24 घंटे का दिन है, 1/3 ऑफ द डे, मतलब एवरेज आप आने वाले कल में जिस फील्ड से ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, वो फील्ड के बाद आप जॉब करेंगे या खुद का बिजनेस करेंगे, मिनिमम 8 आवर आपको जॉब करनी पड़ेगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 8 to 10 आवर आपको मिनिमम बिजनेस पे बैठना पड़ेगा। मतलब आज आप जो डिसीजन लेके पढ़ाई करेंगे ना, पूरी 1/3 लाइफ आपको उसमें स्पेंड करनी है। तो सोच के डिसीजन लिए, आपकी लाइफ का 3rd पार्ट, आपकी तीसरे भाग की जिंदगी आपको वहां पे बितानी है। और उसके बाद हम ये बिना सोचे डिसीजन लेते। कई लोग तो 25 साल के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये सोचते अब मुझे क्या करना है। अरे भाई ये तुझे 10वीं में सोचना था। कई तो तभी भी नहीं सोचते और 60 साल तक लगातार काम करते, और 60 साल के बाद रिटायर होने के बाद चेयर पे बैठे बैठे फ्री होके, रिलैक्स होके ये सोचते हैं कि आज तक मैंने सोचा क्या। अब क्यों दादा सोच रहे हो, जाओ ना। मुद्दा ये है साहब कि सोच राइट टाइम पे हो तो वो अच्छी है। दिखा दिखी में आके, अपने फ्रेंड सर्कल की आवेश में आके आप कॉलेज या स्कूल या स्ट्रीम मत सिलेक्ट कीजिए। मुझे कई पेरेंट्स जब काउंसलिंग में, करियर काउंसलिंग में आते हैं तब ये पूछते हैं
कि सर मेरे बेटे के 10वीं में 90% है तो उसे साइंस ही लेना चाहिए ना। अरे मैंने कहा ऐसी कोई किताब में लिखा है क्या कि 86 के ऊपर हो तो साइंस ही लेना है, 70 से 86 के अंडर में है तो कॉमर्स में ही जाना है। अच्छा 70 से नीचे, ओ माय गॉड, आपको आर्ट्स में ही जाना है। ये हमने सोच बनाई है कि इतने परसेंट वाले स्टूडेंट साइंस के लिए, इतने कॉमर्स और इतने आर्ट्स। मैं आपको दावे के साथ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप कॉमर्स में जाइए, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं आप साइंस में जाइए। मैं ये कह रहा हूं कि आप जिसके लिए बने हैं ना फ्रेंड्स, वो फील्ड में जाइए। गलती से भी लिया हुआ गलत डिसीजन आपके करियर को बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। 50% वाले स्टूडेंट भी साइंस में जा सकते हैं, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो 50% के स्टूडेंट साइंस में रिजल्ट 10वीं में रिजल्ट लाने के बाद साइंस में A1 ग्रेड तक पहुंचे। और ऐसे भी एग्जाम्पल है 10वीं में A1 का झंडा गाड़ दिया और 12th में फेल होके आए। क्यों? क्योंकि बच्चा था कॉमर्स का और चला गया साइंस में। बायो में कुछ पल्ले ही नहीं पड़े, साइंस में कुछ पल्ले ही नहीं पड़े, वो मैथ्स के इंटीग्रेशन कुछ समझ में ही ना आवे, डेरिवेशन कुछ पता ही ना लगे। सो फ्रेंड्स, सोच करके जाइए करियर। साइंस लेना है साइंस लीजिए, कॉमर्स लेना है कॉमर्स, आर्ट्स लेना है आर्ट्स लीजिए। लेकिन कई स्टूडेंट मुझे ये पूछते, सर साइंस अच्छा है कि कॉमर्स अच्छा है? दोनों अच्छा है, तू किन में अच्छा है वो देख ले। સાયન્સ લેવું કોમર્સ લેવું બે સારું છે, તું શેમાં સારો છે એ જો, અને તું એકમ ચાલે એમ ના હોય તો આર્ટ્સમાં જા, કેમ કે આર્ટ્સમાં ચાલવાનો હોય, ડિપ્લોમા જા, અને કઈ ના કર તો ઘરે જા, પણ ક્યાંક જા। बात समझ में आ रही है? सो कुछ करिए। पॉइंट इज दैट एनालिसिस, आप अपने आप का एनालिसिस कीजिए। अच्छा चलो मैं आपको थोड़ी बहुत हिंट देता हूं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट के लाइफ में कंफ्यूजन होगा कि साइंस में कॉमर्स में। अच्छा कईयों को ये भी कंफ्यूजन होगा क्योंकि करियर में 4 बार आपको क्वेश्चन करना पड़ता है। पहली बार 10वीं के बाद साइंस लू, कॉमर्स लू, आर्ट्स लू कि डिप्लोमा लू। अब ये बहुत इजी डिसीजन है कि चलो साइंस ले लिया, लेकिन सेकंड क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा आफ्टर 12th। आफ्टर 12th साइंस अगर ए ग्रुप से है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बी ग्रुप से बहुत सारे ऑप्शन है। अगर 12th कॉमर्स के बाद फिर भी बहुत सारे ऑप्शन है, सीए करूं, सीएस करूं, बीकॉम करूं, बीबीए करूं, और बीकॉम बीबीए के साथ साथ में क्या सीए की प्रिपरेशन करूं कि नहीं करूं, एलएलबी करूं, इंटीग्रेटेड कोर्स कर लूं, बीबीए एलएलबी कर लूं, क्या करूं, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन तब पूछना पड़ता है, चलो एक स्ट्रीम आपने सिलेक्ट कर ली कि मैं बीकॉम करना चाहता हूं, बीकॉम के साथ सीए की प्रिपरेशन कर लूंगा। अब आपका जब बीकॉम कंप्लीट होगा तब भी एक तीसरा क्वेश्चन है, मास्टर करूं या ना करूं। अगर मास्टर भी कंप्लीट कर लिया और सीए भी कंप्लीट हो गया, लाइफ में फोर्थ क्वेश्चन आपको मिलेगा, जॉब करूं या बिजनेस करूं। सो ये 4 मेजर क्वेश्चन आपकी लाइफ में आपको मिलेंगे। इनमें कई स्टूडेंट पहले क्वेश्चन पे होंगे, कई सेकंड पे होंगे, कई थर्ड पे होंगे, कई फोर्थ पे होंगे। जब भी आपको कंफ्यूजन हो, एक आइडियली मेथड है, इस मेथड को आप फॉलो कीजिए। फर्स्ट, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको क्या अच्छा लगता है, या आप कौन से काम को लेकर आप इंटरेस्टेड है। कौन सा ऐसा काम है जो आपको बोला जाए कि भाई ये काम करने के आपको 1 भी रुपया नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको ये करना है। क्या आर यू रेडी फॉर दैट? मतलब उसे आप इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट की डेफिनेशन और कुछ नहीं है। बीच में कोरोना का टाइम था, जो पहले फेज में, मतलब लास्ट मार्च में, मार्च में, तो मैं अक्सर, मुझे तो ये आदत सी हो गई कि जैसे कि ये संडे है तो हर संडे 3-4 प्रोग्राम्स रहते। आज भी ये जैसे तीसरा प्रोग्राम है तो ये थर्ड प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद फोर्थ सेशन 2 बजे स्टार्ट होगा। सो अक्सर ये आदत हो गई। अब हुआ ये सडनली कोविड आ गया, तो कोविड आने से ये पूरे प्रोग्राम्स, कार्यक्रम सब बंद हो गए। अब बोलने की आदत हो गई, बिना बोले रह नहीं सकते। अब घर पे भी कितना बोले, वहां पे भी तो हमारी लिमिटेशन होती है और पूरी परमिशन होती नहीं है। शादी के बाद तो बिल्कुल नहीं होगी। सो ये अभी आपका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले कल में हम उसके ऊपर भी प्रोग्राम करेंगे। सो पॉइंट इज दैट, तो मैंने एक आइडिया निकाला, मैंने सभी स्कूल को एक मैसेज शेयर किया कि भाई आपको स्कूल में टीचर्स ट्रेनिंग अगर करनी है, मतलब ये कोविड में आप कैसे डिजिटल, कैसे जूम का यूज करें, और डिजिटली प्लेटफॉर्म, क्योंकि टीचिंग फील्ड के लिए भी प्रोफेशन था, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। क्लास में चौक एंड डस्टर से जो पढ़ा रहे थे वो डिजिटल स्क्रीन पे हम आ गए, मोबाइल और लैपटॉप के सामने आ गए। और निरंजन भाई जैसी तो बहुत ऐसे कम फैकल्टी होगी, बहुत ऐसे कम सोच वाले लोग होंगे जो डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं और पूरी डिजिटली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसे एडॉप्ट करके आज बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन भी दे रहे। आज इतने बेस्ट वीडियो शूट भी करते हैं, एडिटिंग करते हैं और स्टूडेंट को पहुंचाते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते। तो मैंने सभी स्कूल को मैसेज दिया कि भाई टीचर्स ट्रेनिंग करवाओ।
अब कोविड में टाइम में कोई पैसा तो देगा नहीं, तो मैंने कहा फ्री में करवाओ, मुझे बोलना है, आप मुझे बुलाओ। तो ये हो गया मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो आपके वैसे कौन से एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपको कौन सा काम बिना पैसे भी अगर करना पड़े तो आपको मजा आता है? पैसे मिलते तो सबको मजा आता है, लेकिन बिना पैसे भी, क्योंकि इंटरेस्ट ऐसे नहीं कहते कि जैसे कि कोई नाके पे अगर मजदूर खड़ा है तो आप उसे बोलो कि भाई 600 रुपए, तो सुबह से लेकर शाम तक आपके वहां पे आके वो काम करेगा। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मजदूरी करना, ये काम करना उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसे 600 रुपए मिल रहे। आप उसे बोलो कि 600 नहीं मिलेगा, आएगा तो ना बोल देगा। पॉइंट इज दैट बिना पैसे भी आप कौन सा काम कर सकते हैं, तो वो हो गया आपका इंटरेस्ट। आपको लिस्ट बनाइए ना, आराम से बैठे लिस्ट बनाए, वैसे भी कौन सा काम है आपके पास, तो ये लिस्ट बनाइए, लिस्ट बन जाता है। अब ये मत सोचिए लिस्ट बनाते वक्त कि ये करियर बन सकता है कि नहीं, ये मत सोचिए। आपको क्या पसंद है, बस लिस्ट बनाइए। आपको घूमना पसंद है, आपको फ्री बैठे पसंद है, आपको ऐसे बैठ के मतलब कुछ नया सोचना पसंद है, आपको पढ़ना पसंद है, टीवी देखना पसंद है, मोबाइल पसंद है, सोशल मीडिया पसंद है, गेम पसंद है, क्या पसंद है, डांस पसंद है, गाना पसंद है, क्या पसंद है, लिस्ट बना भाई। और किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो पसंद होगा। बात समझ में आ रहा है? सिंपल है, करियर सिलेक्ट करना है, ये कंफ्यूजन दुनिया ने बना दिया है, बाकी सिंपल है। सेकंड जो पॉइंट है, इंटरेस्ट जैसे ही आइडेंटिफाई हो जाता है, उसके बाद जो आपका जो सेकंड जो पार्ट है वो है स्किल। अब सिर्फ इंटरेस्ट से काम नहीं होगा। अब जैसे कि मुझे पसंद है गाना, लेकिन गाने की प्रॉपर स्किल है क्या मेरे पास? मैं गाने का शुरू करूं तो मतलब आजू बाजू जो सोसाइटी में जो कौवे हैं वो रहते कि उड़ जाते? मेरे घर के लोग मुझे साइन करते कि नहीं करते? स्किल तो होनी चाहिए। मुझे डांस पसंद है, लेकिन क्या मैं कर पाता हूं? मुझे लिखना पसंद है क्या, लेकिन अच्छे लिखने की राइटिंग स्किल मेरे पास है? मुझे कंटेंट लिखना पसंद है, लेकिन क्या मैं प्रॉपर कंटेंट लिख पा रहा हूं? तो कौन सी स्किल है जो आपके पास है, जो आप बेस्ट कर सकते हैं? अब इसे भी आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है। आप अपने स्कूल टाइम में सोचे, 5th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में आप स्कूल की कौन कौन सी कंपटीशन में पार्ट लेते थे? आप कभी स्कूल में जो स्पीकिंग कंपटीशन थी उनमें कभी आपने पार्ट लिया क्या? वहां पे आपका कभी 1st, 2nd, 3rd रैंक आया? कभी टीचर ने आपको एप्रिसिएशन दिया कि यार बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने स्वामी विवेकानंद के ऊपर स्पीच दी, वंडरफुल, कीप इट अप? क्या कभी आपको एप्रिसिएशन ऐसा मिला? क्या कभी आप डांस की कंपटीशन में पार्ट लिए? क्या कभी आप मैथ्स की क्विज में पार्ट लिए? क्या कभी आप जनरल नॉलेज की क्विज में पार्ट लिए? कहां से आपको एप्रिसिएशन मिला? अपने परिवार के फंक्शन में आपने कभी पार्टिसिपेट किया? आज तक आपके रिलेटिव्स ने, अपने फ्रेंड ने कभी आपको कौन से पॉइंट पे आपको एप्रिसिएशन दिया? उसे याद कीजिए, उसे सोचिए। खुल के सोचना मतलब करियर के बारे में भी आप सोच सकते हैं, लाइफ के बारे में भी सोच सकते हैं, गोल के बारे में भी सोच सकते हैं, जिसकी कोई लिमिट ना हो, उसके ऊपर कोई दबाव ना हो, कोई वजन ना हो, ऐसे फ्री माइंड से आप सोच सकते हैं। बड़ा सोचने की जो बात है। सेकंड पॉइंट है स्किल। एक हो गया इंटरेस्ट, एक हो गई स्किल। अब 2 लिस्ट आपके पास बन गया कि भाई इतना काम मुझे पसंद है और ये स्किल मेरे पास है। सिंपल है। अब आपको क्या देखना है कि स्किल और इंटरेस्ट ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है क्या? वैसे कौन कौन से इंटरेस्ट और कौन कौन सी स्किल है जिसका कॉम्बिनेशन हो रहा है? बात समझ में आ रही है? ये निरंजन भाई का जो करियर गाइडेंस का सेशन था, शायद आप लोगों ने जो अटेंड अगर किया हो, तो ये निरंजन भाई ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया उस सेशन में। मैं उस वक्त थोड़ा फ्री था, मैंने भी पार्टिसिपेट किया और वंडरफुल सेशन था। बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल देकर निरंजन भाई ने नीरू क्लास के सपोर्ट से ये जो प्रोग्राम्स था बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अगर आपको लिंक मिलती है तो आप भी एक बार इस प्रोग्राम को देख लीजिए। लेकिन स्किल और इंटरेस्ट मैच हो रहे, उससे आप आइडेंटिफाई कीजिए। अब जो थर्ड स्टेप है, आपका पर्सनैलिटी टाइप है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं सिविल इंजीनियर हूं, आपको नहीं लगेगा लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं मैं हूं। In the year 2015, I completing my civil engineering from LD College of Engineering, Ahmedabad. अब हुआ ये, अब बात को समझिए। चलो आप सिविल इंजीनियर बन गए, लेकिन ये बनने के बाद नहीं सोचना है, बनने से पहले, वो फील्ड को सिलेक्ट करने से पहले, करियर को चूज करने से पहले मुझे ये सोचना है कि भाई मुझे सिविल इंजीनियर बनना है। अच्छा चलो मैं 1-2 सिविल इंजीनियर को मिल लूं। अच्छा भाई सिविल इंजीनियर में काम क्या होता है? तो आपको पता लगेगा कि धूप में, बारिश में, सर्दी में जाने का टाइम फिक्स होता है, आने का टाइम फिक्स नहीं होता। आज ये साइड पे, कल वो साइड पे, आज ये सिटी पे, कल वो सिटी पे। ट्रांसपोर्टेशन आपको लगातार रहेगा, आपको लेबर वर्क के साथ काम करना रहेगा, जपापंजी करनी पड़ेगी, मगजमारी करनी पड़ेगी।
क्या ये सारी चीज आपकी पर्सनालिटी को शूट करता है तो आप सिविल इंजीनियर बनिए। लेकिन आपको डस्ट की एलर्जी है, आप धूप में रह नहीं सकते, सिविल इंजीनियरिंग बन के करोगे क्या? क्योंकि डस्ट में तो काम करना है आपको, मजदूर लोगों के साथ तो आपको काम करना है। बात समझ में आ रही है? सिविल इंजीनियरिंग को ऑफिस में अंदर बैठ के कुछ काम नहीं करना है, तो आप आर्किटेक्ट बन जाइए, आप प्लानर बन जाइए, आप प्लान दीजिए। आपको पर्सनालिटी के हिसाब से क्या शूट होता है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आपका सपना है, आपकी ख्वाहिश है, आप कोई डॉक्टर की लाइफस्टाइल देख के आप इंस्पायर हो गए, आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन अगर एकाध बूंद भी खून देख लो तो आप मतलब अनकंफर्टेबल फील करते हो, आप देख नहीं सकते। अगर किसी को अगर स्टिच लेने पड़े, टांके लेने पड़े, तो आप देख नहीं सकते। आप सर्जन बन के करोगे क्या? कोई इमरजेंसी पेशेंट है, आप बोले ऐसा तो हम देख नहीं सकते, तो घर पे रहो। देखो, पढ़ाई करके डिग्री लेना अलग बात है और फील्ड में जाके काम करना अलग बात है। तो आप वैसा ही प्रोफेशन सेलेक्ट कीजिए जो प्रोफेशन के अंदर आपकी पर्सनालिटी शूट करती हो। इंटरेस्ट देखिए, स्किल देखिए और पर्सनालिटी टाइप देखिए, और लास्ट में आप एक चीज और देखिए, वो है फाइनेंशियल। आपके पास फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आप जिसमें करियर बनाना चाहते। मुझे याद है, कोई भी स्टूडेंट जो 5th 6th क्लास के स्टूडेंट को आप पूछो ना, बेटा आपको क्या बनना है, उसका एक ही आंसर होता है, मुझे पायलट बनना है। पायलट बनना है, ये हम सबके सपने थे बचपन में। लेकिन 12th साइंस ए ग्रुप कंप्लीट करने के बाद आज की तारीख में अगर मुझे पायलट बनना है तो 1 CR रुपए, 1 करोड़ रुपए, रफली मैं कह रहा हूं, 60-70 में भी हो सकता है और 1-1.5 में भी हो सकता है, डिपेंड्स करता है आप कहां से करता है, वेरी वहां पे करता है, और कितनी बार आप ट्राई करने के बाद आपको कॉमर्शियल पर्सनल लाइसेंस मिलता है, उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन रफली हम काउंट करें 1 करोड़ रुपए लगते हैं आपको सारे लाइसेंस प्राप्त करने के लिए। तो मेरे परिवार की सिचुएशन है, क्या मैं पैशनेट पर्सन हूं, क्या हम ये एफर्ट कर सकते हैं? हाँ, हालांकि माना कि स्कॉलरशिप है और एग्जाम्स वगैरह सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप रेडी है तो यू कैन डू दैट। ऐसे प्रोफेशन में बिल्कुल ना जाए वहां पे आपका फाइनेंशियल बजट ही ना हो। सो ये सारी चीज, इंटरेस्ट, स्किल, ये बजट और पर्सनालिटी, ये सबको मिलाकर आप करियर सेलेक्ट कीजिए। आपको पता लग जाएगा आपको साइंस करना, कॉमर्स करना, आर्ट्स करना, डिप्लोमा करना, या कॉमर्स के बाद सीए करना, नहीं करना, कॉमर्स के बाद मास्टर करना, लॉयर फील्ड में जाना, किस फील्ड में जाना, यू नो वेरी वेल। आपको जीपीएससी जाना, यूपीएससी जाना, बैंकिंग में जाना, रेलवे में जाना, लॉट्स ऑफ ऑप्शन विल बी देयर। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप बार्क में जा सकते हैं, एज ए साइंटिस्ट के और काम कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ ऑप्शन, राइट। सो इतने पॉइंट्स देखकर आप करियर सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ हमें याद रखना है अपना स्पेलिंग, स्टार्ट। तो जो स्टार्ट का जो एक लेटर था हमने देखा, एस के ऊपर से देखा सेल्फ कंट्रोल, टी के ऊपर से देखा ट्रस्ट, अब ए के ऊपर से देखा एनालिसिस, अगेन जो आया आर, एंड दैट इज रेगुलरिटी। खुल के सोच लिया या खुल के सोचने के बाद उस काम को करने की रेगुलरिटी चाहिए। जब तक आप कोई भी काम को रेगुलर तरीके से नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम सब ने मेडिटेशन का सेशन अगर आपको अटेंड किया हो आपने अपनी लाइफ में, योगा या प्राणायाम या मेडिटेशन का, या अलग अलग कोई आप आर्ट ऑफ लिविंग के अगर कोई कोर्स किए हो कभी भी लाइफ में, या कहीं से भी आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिली हो योगा प्राणायाम मेडिटेशन को लेकर, तो हम 1-2 दिन करते, उसके बाद जयराम जी की। अगर कोई 1-2 लोग हमें बोल दे कि भाई ये जरा टमी का देखो, जरा ये बाहर निकल गया है, तू 6 पैक से फैमिली पैक की ओर जा रहा है, जरा ध्यान रख भाई। या तो जब भी आप ब्लेजर पहनो और आपको अंदाज लग जाए कि भाई ये यार ये अब फिट हो रहा है, थोड़ा बहुत रुकने का आपको मन करे, लेकिन वो डाइट प्लान को आप 1 और 2 दिन ही अगर फॉलो कर पा रहे हो तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस, रेगुलरिटी इज मस्ट रिक्वायर्ड। कोई भी काम में आपको सफल होना है। आईपीएल कैंसिल हो गई या आईपीएल पोस्टपोन हो गई तो क्या वो प्लेयर आज की तारीख में प्रैक्टिस नहीं कर रहे? मुझे कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर एग्जाम की डेट आ जाए बाद में हम प्रिपरेशन करें। आईपीएल पोस्टपोन हो गई, आपकी बोर्ड की एग्जाम की सिचुएशन है, आईपीएल कोई डेट डिक्लेयर नहीं हुई कि ये डेट से हम आईपीएल फिर से रिकंटिन्यूअस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार आपकी एग्जाम, हाँ आईपीएल होगी वैसा लोग कह रहे हैं, बोर्ड की एग्जाम होगी वैसा बोर्ड कह रहा है। आईपीएल की भी डेट नहीं है, बोर्ड की एग्जाम की भी डेट नहीं है, आपकी कॉलेज की एग्जाम की भी डेट नहीं है। माय क्वेश्चन इज दैट आईपीएल के प्लेयर क्या आज की तारीख में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आंसर इज यस। माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट क्या आप अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं?
इफ आंसर इज नो, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सुपरस्टार में नहीं हो, आप सेलिब्रिटी वाली कैटेगरी में नहीं हो, आप और कैटेगरी में हो। जब एक प्लेयर विराट कोहली अगर बैटिंग की प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ सकता, तो तू क्यों? क्योंकि तू, तेरे सब्जेक्ट में तो विराट कोहली है ना भाई। तो अपने साइंस में, अपने सोशल साइंस में, अपने हिस्ट्री में, पॉलिटी में, जियोग्राफी में, अकाउंट में, स्टेट में, इको में, बीए में, एसपी में, अपने सब्जेक्ट में तू अपना विराट कोहली है। वो क्रिकेट में है, तू अपनी पढ़ाई में है। वो उससे प्रैक्टिस इसलिए करनी है क्योंकि उसे विराट ही रहना है। तो आपको आपकी कॉलेज में, स्टडी में, स्टैंडर्ड में विराट रहना है, तो रेगुलर रहिए, रेगुलरिटी प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे प्रोग्राम्स आप अटेंड करते रहिए, सतत आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। जेसीआई संस्था के अगर आप संपर्क में आए, जेसीआई संस्था के बारे में आप जानिए। यहाँ पे जूनियर जेसी, बहुत मतलब बिलो 80 एज वाले भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। जूनियर जेसी वर्ल्ड लार्जेस्ट एनजीओ में से एक है जेसीआई। हम किसी गरीब को खाना नहीं देते, मतलब वो देते तो बात अलग है, वो एक्टिविटी हम नहीं करते। किसी को अगर ठंड लग रही है तो उसे मतलब वो अरेंजमेंट हम नहीं करते, वो काम नहीं करते। हम यहाँ पे क्या करते? हम यहाँ पे एक यंगस्टर को, एक यूथ को एक नई डायरेक्शन देते, एक सोच देते हैं, उसे अपने पैरों पे खड़ा करने का हम एक नया काम कर रहे हैं। हम एक दिन खाना देने की चैरिटी नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि जेसीआई के टच में आने के बाद उसे पूरी जिंदगी, उसे और उसके फैमिली और उसके एरिया ऑफ सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, उसे जिंदगी में कभी खाने की दिक्कत ना हो, वैसे उसे अंदर से, तन से, मन से हम मजबूत करने का प्रयास करते। ये काम जेसीआई करती है। आप आइए, ऐसी संस्था के साथ जुड़िए, सीखते रहिए। क्यों घर पे बैठे फोन पे मगज दिमाग अपना खराब कर रहे, टीवी देख के अपना दिमाग खराब कर रहे, हॉटस्टार की सीरीज देख के अपना दिमाग खराब कर रहे? क्यों एपिसोड देखते हो? क्यों इतनी सीरीज देखते हो? क्यों इतनी सीरियल देखते हो? उससे कुछ मिला भाई? वो अनुपमा आपको बेवकूफ बनाती जा रही है, आज डिवोर्स दूं, कल डिवोर्स दूं। तू क्यों बेवकूफ बनती है? सलमान खान आ गए मूवी लेकर, उन्होंने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, करोड़ों रुपए कमा के चले गए। अब आएंगे फिर से अगली ईद पे। मुझे कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उसका वो काम है। जैसे ये मेरा काम है, जैसे ये आपका काम है, वैसे ही वो उसका काम है। वो तो हर ईद पे आएगा और अपनी ईद बेटर बना के चला जाएगा। लेकिन तेरी ईद का क्या? तेरा चांद निकला क्या? सोच जरा भाई, तू खुल के सोच। इसलिए आज का ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया। माय डियर फ्रेंड्स, रेगुलरिटी इज मस्ट रिक्वायर्ड इन अवर लाइफ। अगर आपको सफल होना है, कोई भी फील्ड में सफल होना है, तो ये पॉइंट चाहिए। ये मैं आपको सक्सेस की कैप्सूल दे रहा हूं, ये मैं आपको खुल के सोचने की कैप्सूल दे रहा हूं, अपनी सोच पे विजय पाने की कैप्सूल दे रहा हूं। क्योंकि सोच तो सालों से थी, है और रहेगी। पॉइंट ये है कि हमने उसे अपनाया क्या, राइट? सो लाइक रेगुलरिटी। उसके बाद नाउ फुल एंड फाइनल, फिफ्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट और वेरी यूजफुल टॉपिक इज दैट टारगेट क्लैरिटी। आप कितना क्लियर हो अपने टारगेट को लेकर? मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को क्या करना है वो तो क्लियर होता है, लेकिन क्या नहीं करना वो नहीं क्लियर होता। अगर आपको क्या नहीं करना वो आइडेंटिफाई कर लो ना, तो बचेगा वो सब आपको करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट फ्रेंड्स? अक्सर जिंदगी में हम ये यंग एज में एक दो ऐसी गलती कर देते हैं जिससे हमारी लाइफ का जो टारगेट है वो क्लियर नहीं रहता, या वो जो पिक्चर है ना वो कहीं धुंधलापन सा हो जाता है। टारगेट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपको क्या करना है? ऑप्शन बहुत सारे हैं। क्या सिर्फ पैसे कमाना आपका पर्पस है? अरे पैसा तो पानीपुरी की लारी वाला भी कमा रहा है। आपके बड़ौदा में बहुत सारे ऐसे पानीपुरी लारी वाले हैं जो दोपहर के बाद मतलब 4-5 इवनिंग में लगते हैं लारी, और शाम के 9-10 बजे तक तो 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 7,000 रुपए कमा के चले जाते हैं। पैसा कमाना सिर्फ पर्पस होता तो पानीपुरी की लारी खोल लेते हैं। मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूं कि जो पानीपुरी की लारी चला रहे वो सिर्फ पैसा ही कमा रहे, नहीं। लेकिन हमें क्या करना है? अगर सबको भेजे के साथ ही भेजा है तो क्यों ना ऐसा हम काम करें, क्यों ना हम लाइफ कैसे गोल ले कि हमारी वजह से 5 लोगों की लाइफ में इंपैक्ट हो, हमसे कोई सीख के 5 लोग इंस्पायर हो, हमारी लाइफ का एग्जाम्पल आने वाले कल में हम स्टूडेंट को दे पाए। क्यों ऐसा न बने, क्यों ऐसा न सोचे? आप सोचिए, आज ये कोविड की जो वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में, एक इंडिया ऐसा देश है जहां पे बैक टू बैक हमने 2 वैक्सीन का क्रिएशन कर दिया। इंडिया ऐसा देश है जिन्होंने भी ये किया है, जो भी इस टीम में शामिल है। कंपनी मैटर नहीं करती, कंपनी तो एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहां पे आपके मेरे जैसे जो साइंटिस्ट, जो विद्वान, जो एक्सपर्ट, जो रिसर्चर हो गए, जिन्होंने ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया, अपनी बुद्धि लगाई, अपना पूरा सामर्थ्य उनमें लगा दिया, ये जो
पार्ट वाले जो स्टूडेंट्स है, ये जो पार्ट वाले जो बंदे हैं, ये जो इसकी खुली हुई सोच है कि हम भी ये कर सकते, जहां पे पूरा विश्व बौखला गया था कि अब हमें क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा, वहां पे भारत एक ऐसा देश था, भारत के लोग ऐसे थे, भारत के स्टूडेंट ऐसे थे, भारत के साइंटिस्ट ऐसे थे कि हमने इस दुनिया को फिर से खड़ा होने की, फिर से उम्मीद की एक रोशनी की किरण हमने दिखाई। क्या आप ऐसा करियर बनाना चाहते हैं? क्या आप ऐसी सोच रख रहे हैं कि आपकी एक सोच से काम हो जाए? बिजनेस पैसे तो आज नहीं तो कल हम कमा लेंगे, लेकिन लाइफ में हमने कितना ग्रोथ किया, हमारी लाइफ से कितने लोगों को बदलाव आया, कितने लोगों को फायदा हुआ, कितने लोग हमसे इंस्पायर हुए, वो बहुत मैटर करता है मेरे दोस्त। इसलिए हमें ये काम करना है, इसलिए आप सब लोग ये ऐसे प्रोग्राम्स में शामिल है, वरना आपके पास बहुत चॉइस थी। ये जूम पे भी नेट तो जा ही रहा है, इससे बेटर आप यूट्यूब में कोई वीडियो देखते, आपके पास चॉइस थी, लेकिन आपने वो चॉइस को क्विट किया और आप यहां पे आए, और कोई कंपलसरी नहीं है। अभी आप रिमूव हो जाओ तो हमें कहां पता लगेगा, लेकिन फिर भी आप है, मतलब आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते, आप भी खुल के सोचना चाहते, आप भी कहीं ना कहीं अटक पड़े हैं। इस 5 पॉइंट को अपनाइए, आपकी लाइफ में फिर से वो किसी का धक्का लगे ना तो हम फिर से वो भागने लगते हैं। तो इस प्रोग्राम्स को आप एज धक्के के रूप में ले सकते हैं। मैं जामवंत नहीं कि जहां जाके मैं हनुमान को उठाता चलूं, लेकिन आज के इस प्रोग्राम से मैं चाहता हूं कि हम कुछ सीख के जाए, कुछ एक्शन लेके जाए, कुछ ऐसा कमिटमेंट देके जाए कि नहीं हमें भी ये करना है। क्योंकि पूज्य बंदी मुरारी बापू 900 कथाएं की, बेचारे बापू इतनी कथा करने के बाद अगर गिनने जाए तो 900 लोग नहीं सुधरे, तो उसका मतलब ये नहीं कि बापू कथा करना बंद कर दे, मतलब ये है कि लोग उनमें से सीख रहे हैं ना, वो इंप्लीमेंट करना शुरू कर दे। ऐसे प्रोग्राम्स, ये जितने भी सपोर्टेड एंड स्पॉन्सर, जितनी भी संस्थाएं आज के इस प्रोग्राम में सपोर्ट सहयोग के रूप में जुड़ी है, आपका हमारा सबका कर्तव्य है कि ये सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी कुछ यहां से सीख के जाए। अगर आप इस बातों को सिर्फ बात रखेंगे तो कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, लेकिन एक आध पॉइंट इंप्लीमेंट कर दिया तो आपकी लाइफ में भी स्टार्ट का धक्का लग जाएगा। हम जानते सब कुछ है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते, स्टार्ट नहीं करते। अगर आप भी इस स्टार्ट से अगर सफर की शुरुआत करें तो आप भी कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते। मेरी यूट्यूब चैनल पे मोर देन 450 वीडियोस, 450 से भी ज्यादा ऐसे वीडियोस है गुजराती हिंदी लैंग्वेज में, जो एक स्टूडेंट को, एक यूथ को, एक यंगस्टर को बहुत बेनिफिट देगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं, सोशल मीडिया से आप कनेक्ट रह सकते हैं, ताकि ऐसे और सारे बहुत सारे फ्री प्रोग्राम्स भी हमारे होते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे और आप भी अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा जो सेशन, मेरा जो पार्ट था वो मैं कंक्लूड करता हूँ। 10-15 मिनट का गैप हम लोगों ने इसलिए रखा है कि अगर कोई स्टूडेंट, इफ यू आस्क एनीथिंग रिलेटेड दिस सेशन, रिलेटेड दिस थिंकिंग, या एनी क्वेश्चन जो आपके रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड, करियर को रिलेटेड है, आप पूछ सकते हैं। एज पर जो भी हेड यहाँ से आपको परमिशन देंगे इस हिसाब से। सर मेरा यहाँ पे जो सेशन है वो मैं कंक्लूड करता हूँ। अब थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। रिक्वेस्ट करते हैं सब स्टूडेंट्स के, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लीज ask this question to अशोक सर। उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, मोस्ट सक्सेसफुल जितने स्टूडेंट्स पास आउट हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, उनके इंटरव्यू का जितना अनुभव आप लेना चाहते हैं क्वेश्चंस के द्वारा ले सकते हैं। सो प्लीज आस्क क्वेश्चंस, चैट आप सबके लिए खुला है। सो आई विल गो टू चैट, इफ देयर आर क्वेश्चंस मैं अपने क्वेश्चंस पढ़ लूंगा। आया है, इफ वी आर कंफ्यूज्ड बिटवीन टू प्रोफेशन सो हाउ टू डिसाइड। अगर दो प्रोफेशन के बीच में अगर हम कंफ्यूज हैं तो क्या करें? ओके गुड। दो प्रोफेशन में से मुझे कंफ्यूजन है तो मैं कौन सा प्रोफेशन सेलेक्ट करूं? अब ये मैटर करता है फ्रेंड्स कि पहले तो वो दो प्रोफेशन कौन से। आप क्या कीजिए, ये जो 4 स्टेप है, कौन सा प्रोफेशन, पहले कोई भी प्रोफेशन की क्लैरिटी हमें कब मिलती है पता है? कि सपोज अगर मुझे कोई प्रोफेशन में कंफ्यूजन है कि भाई मुझे सिविल इंजीनियर बनना या मुझे आर्किटेक्ट सेलेक्ट करना है, मैं हूं तो ए ग्रुप का ही बंदा, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन सिविल बनूं कि आर्किटेक्ट बनूं, तो ये दोनों कंफ्यूजन में क्लैरिटी कब मिलेगी पता है? बेस्ट मेरे हिसाब से, अब मैं जितने भी आंसर दे रहा हूं वो कोई स्टैंप नहीं है कि ऐसे ही होगा, लेकिन आई सजेस्ट कि आप ट्राई कीजिए, मे बी आपको रास्ता मिल जाए। आप क्या कीजिए, 1-2 सिविल इंजीनियर को मिलिए, 1-2 आर्किटेक्ट को मिलिए, उसका काम किस प्रकार से रहता है, मॉर्निंग टू नाइट वो कैसी एक्टिविटी करते हैं और यहाँ पे अर्निंग स्कोप क्या है, अब उसका जो वर्क है आने वाले कल में मार्केट को उसकी नीड है क्या, आने वाले कल में उसका स्कोप बढ़ेगा क्या,
या कम होगा, ये भी देखना बहुत जरूरी है। एक चीज ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, इंटरेस्ट तो हम सबके पास आइडेंटिफाई हो गया, स्किल भी आइडेंटिफाई हो गई, लेकिन मार्केट में उसकी नीड कितनी है वो भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक वक्त था कि टोल नाके पे बहुत लंबी लंबी लाइन लगती थी। आपके बड़ोदरा LNT या करजन पे आप जाए तो टोल नाके पे बहुत लंबी लंबी लाइन लगती थी, लेकिन फास्टैग आने के बाद किसी को भी 2 मिनट का वेट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर वहां पे ये फास्टैग आने से कई लोगों की जिंदगी, कई लोगों की जॉब चली गई है, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हैं या जो भी करियर में कंफ्यूजन है, उनमें एक करियर ऐसा होगा जो आने वाले कल में सूर्योदय होगा, और एक करियर ऐसा होगा जिसका सूर्यास्त होगा। आपको अगर सूर्यास्त में भी मजा आ रहा है फिर भी मत जाइए, क्योंकि डूबती हुई नाव, जो भी लोग नाव में बैठे उसे लेकर भी डूबेगी। आने वाले कल में वही करियर में आप जाइए जिसका सनराइज हो रहा, सनसेट दुनिया देख के मजा करती है, जो सनराइज होता है उसे हम नमन करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले कल में दुनिया में मुझे नमन करे तो सनराइज वाली फील्ड में जाइए और ये 4 पॉइंट को आइडेंटिफाई कीजिए। आप थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन आया है, देयर आर मेनी क्वेश्चंस, एक के बाद हम एक ले रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, पूछा है कि कॉमर्स 10वीं के बाद कॉमर्स लेने के लिए कितने परसेंटेज होने चाहिए? 10वीं के बाद कॉमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया, और आपको आपके जैसे क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा। माय डियर फ्रेंड्स, 10वीं से पास होना चाहिए, और वो गवर्नमेंट ने आपको सबको कर दिया। मास प्रमोशन देकर आप सबके A1 ग्रेड आ गए हैं। आप कॉमर्स के लिए इंटरेस्टेड है, आप कॉमर्स ले सकते हैं। अगर आप साइंस के लिए इंटरेस्टेड है तो साइंस ले सकते हैं। परसेंटेज कोई मैटर नहीं करते। हाँ, डिपेंड्स करता है आप जो भी स्कूल में लेना चाहते हो उस स्कूल के अगर रूल्स और कुछ क्राइटेरिया हो सकते हैं। कोई स्कूल होती है जो 70% ऊपर वाले स्टूडेंट को ही अगर लेना चाहती है, लेकिन ऐसा कोई गवर्नमेंट की साइड से रूल्स नहीं है कि इतने परसेंट वाले स्टूडेंट ही कॉमर्स ले सकते हैं। आप अगर कॉमर्स फील्ड से इंटरेस्टेड है और कॉमर्स फील्ड को फोकस करना चाहते हैं तो 100% आप कॉमर्स में आइए, कोई परसेंटेज का बैरियर नहीं है। ओके सर, एक दूसरा क्वेश्चन है कि मुझे मेरी पर्सनालिटी इंप्रूव करनी है जिससे सोशल लाइफ में और सक्सेसफुल हो सकूं, तो अपनी पर्सनालिटी को कैसे निखार सकते हैं? ओके, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है एज सुन एज पॉसिबल JCI NGO संस्था को आप ज्वाइन कीजिए। इसके रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन आया सर, मैं ले लेता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि JCI को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। वंडरफुल। सो ये भी एक क्वेश्चन है, इसका आंसर एट द एंड में भी हमारे प्रेसिडेंट को मैं फ्लोर दूंगा आफ्टर क्वेश्चन। थोड़ा वेरी शॉर्ट में आप इंफॉर्मेशन दे देना कि JCI कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये जो हमारे आज के प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं नीरू क्लासेस, उनके यहाँ अगर आप FYS/TY देखो तो पूरे 3 साल ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैंपस टू करियर और इवन बिजनेस कैसे करना है वो इनबिल्ट उन्होंने अपने कोर्स में, जो पूरे गुजरात में कहीं आपने नहीं सुना होगा वैसा है। सो 2 चीज है, ज्वाइन JCI एंड ज्वाइन नीरू क्लासेस इफ यू आर इन कॉमर्स। मे बी नीरू भाई एक ऐड करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर पर्सनालिटी के रिलेटेड क्वेश्चन है तो नीरू क्लासेस, जैसे नीरू भाई ने बात की, नीरव भाई वहां पे, नीरव भाई क्योंकि ये जो नीरव निरंजन ये 2 लोगों ने मिलके एक स्टूडेंट की लाइफ में कैसे हम प्रैक्टिकली चेंज कर सकते हैं। क्योंकि नीरव भाई जो है ना वो बहुत सालों तक एज अ प्रोफेसर, एज अ कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को प्लेसमेंट में पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए वो पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अभी नीरू क्लासेस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो आप वहां पे भी जाके मतलब नीरू क्लास को ज्वाइन करके भी आप अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर सकते हैं। और JCI संस्था, मैं आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, मैं 8 साल से इस करियर में हूं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर सिंस 2013 टू टिल नाउ। मेरी लाइफ में जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं देख पा रहा हूं, मे बी आप ना भी देख पाए, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं, आज 5 साल पहले का अशोक गुज्जर और आज मैं जो भी बदलाव देख पाया हूं, इनमें JCI संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। आप भी अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं तो ज्वाइंट JCI, आप JCI में बिल्कुल आ सकते हैं। ओके सर, देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस। पहले खुद के ऊपर ट्रस्ट होता है, फिर हमारा खुद के ऊपर से ट्रस्ट चला जाता है, उसके लिए क्या करें? ओके, वंडरफुल। ऐसा सबकी लाइफ में होता है। जब भी हम कोई गोल बनाते हैं कि भाई मुझे ये काम करना है, अब हम स्टूडेंट के तौर से एक एग्जांपल लेते हैं कि साल की शुरुआत में, जैसे कि मैं 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूं, तो भी ईयर की शुरुआत में मैंने गोल बना दिया कि मुझे A1 ग्रेड लाना है, और मुझे ट्रस्ट भी है कि मेरा A1 ग्रेड आएगा। लेकिन डे बाय डे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जैसे ही आगे समय निकलता जाएगा वैसे हमारा ट्रस्ट डाउन होगा। इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि आप उसका माइक्रो प्लानिंग नहीं किया होगा,
आपने जो 90% मुझे लाना है, लेकिन मंथली वीकली आपने प्लानिंग नहीं किया होगा, और उस प्लानिंग के हिसाब से आप जब नहीं चलोगे तब आपका ट्रस्ट 100% डाउन होगा। आपको जो भी काम करना है वो आपका अल्टीमेट गोल है, उसका माइक्रो प्लानिंग कीजिए और माइक्रो प्लानिंग को आप ट्रैक करते जाइए, एनालिसिस करते जाइए। जब आप अपने गोल के नजदीक पहुंचेंगे, ट्रस्ट बढ़ता जाएगा और आपकी एक्टिविटी ऐसी होगी जो आपसे गोल से दूर ले जाएगी, तब आपका ट्रस्ट ऑटोमेटिक डाउन होगा। ये कोई कैप्सूल नहीं है, ये कोई बॉर्नविटा नहीं है, एनर्जी बूस्टअप की तरह आपको ट्रस्ट भी बूस्टअप हो जाए, इसके लिए आपको खुद मथना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, माइक्रो प्लानिंग बनाना पड़ेगा और इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सर, ये गोल के रिलेटेड ही एक क्वेश्चन आया है, ये गोल हम कैसे सेट करें और विजन बोर्ड कैसे बनाएं? गोल हम कैसे सेट करें और विजन बोर्ड, ये आंसर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊं। आप मेरी यूट्यूब चैनल है अशोक गुज्जर, वहां पे जाइए, हाउ टू मेक अ गोल, 22 मिनट का वीडियो है, 22 मिनट का वीडियो है। और विजन बोर्ड आपका कैसे होना चाहिए, आपका गोल चार्ट एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, उनमें आपको कौन कौन सी डिटेल मेंशन करनी चाहिए, ए टू जेड डिप में मैंने बताया। लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट में एक क्वेश्चन है तो आंसर में दे देता हूं। आपको एरिया डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कौन से सब्जेक्ट में कौन सा स्कोर चाहिए, करंट लेवल, और आप कौन से लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। जब भी आप गोल बनाए तब ये प्रैक्टिकल चीज जरूर देखें। ऐसे मोटिवेशन प्रोग्राम अटेंड करने के बाद आप भी अगर सोच मुझे भी 90% लाने, और भाई अभी तो 50 आ रहे हैं, तो तू 50 पे अटका पड़ा है तो तू 70 का टारगेट लेना। अगर तू 70 पे पड़ा है तो तू 90 पे ले। आवेश में आके मत प्लानिंग बनाओ, आवेश में आके मत गोल बनाओ, वो अचीव नहीं होगे। थोड़े रियलिस्टिक, थोड़े प्रैक्टिकल गोल बनाओ। करंट लेवल को आइडेंटिफाई कीजिए और टारगेट लेवल को आइडेंटिफाई कीजिए। इस बीच के गैप को आप कैसे फिल कर सकते हैं, वो सारी चीज आपको आइडेंटिफाई करके आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, मोबाइल ले लीजिए, फ्रेंड्स ले लीजिए, फैमिली ले लीजिए, वो डिस्ट्रैक्शंस को हमारे गोल से दूर कैसे करें? डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ी बीमारी है और इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन ही है। सॉल्यूशन ये है, आपकी लाइफ का, आपकी प्रिपरेशन का वाई क्लियर कर दीजिए। डिस्ट्रैक्ट हम तभी होगे जब तक हमारी लाइफ में वाई क्लियर नहीं होगे। आज संडे का दिन है, मैं सुबह 10 बजे मेरी एक ट्रेनिंग थी, 10:30 बजे खत्म हुई, 10:30 बजे दूसरी ट्रेनिंग थी, 12 बजे खत्म हुई, 12 बजे आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, 1:30 बजे खत्म होगा, 2 बजे एक और प्रोग्राम है, 3 बजे खत्म होगा। तो मेरे भी फ्रेंड है, मेरे भी रिलेटिव्स है, मेरा भी फैमिली है, मेरे भी पास मोबाइल है, मेरे पास भी फॉलोवर है, मेरे पास भी यूट्यूब चैनल है, मेरे पास भी नेट है, वाईफाई है। मैं भी और चॉइस ले सकता था, लेकिन ये चॉइस ली क्योंकि मेरा वाई क्लियर है। जब आपका वाई क्लियर होगा, आपको कोई दुनिया में कोई बापू डाइवर्ट नहीं कर सकता। आप खुद अपना वाई क्लियर कीजिए। वाई दिस वर्क, वाई दिस एक्शन, ऑलवेज अपने आप को वाई पूछे। टीवी के सामने बैठे है फिर भी वाई पूछे, मैं क्यों टीवी देख रहा हूं। मोबाइल लेके बैठ रहे, अगर ज्यादा टाइम जा रहा है तो आप वाई पूछे, मैं क्यों ये कर रहा हूं। वाई क्लियर होगा, डिस्ट्रैक्शन आपको छू भी नहीं पाएगा। सर, इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वी आर कंफ्यूज, कहां से पिक करें, कितने पिक करें। मतलब इतना सारा पार्टिसिपेशन आपका है, मतलब बड़ौदा टैलेंटेड है वैसा सुना था, और यहाँ पे दिख भी रहा है। ओके, हाउ टू ओवरकम अवर इनसिक्योरिटीज। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आया है सर, एक बार हमने एक प्रोफेशन पिक कर लिया, शायद बीकॉम पिक कर लिया, ऐसा कुछ पिक कर लिया, फिर हम बड़े बड़े कोर्सेज देखते हैं कि किसी ने सीए किया है, किसी ने सीएस किया है, तो वो बड़े बड़े कोर्सेज, जो बड़े बड़े नाम है, वो देख के हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे हम इन चीजों से कैसे बचें? अगर आपने राइट करियर सिलेक्ट किया होगा और आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आपकी प्रॉपर स्किल होगी। अगर स्किल नहीं है तो आप स्किल डेवलप करने के लिए अगर रेडी है तो कंपटीशन से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर मुझे एमबीए वाले बंदे हायर करने हैं तो एक ऐसा बंदा है जो मुझे आईआईएम से एमबीए करा हुआ मिला है, एक ऐसा बंदा है जो लोकल या तो कोई नेशनल ऐसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ना हो वहां से एमबीए करके निकला है। तो मैं कौन से बंदे को हायर करूंगा? अगर मैं शुरुआत में नाम के ऊपर गया, चलो तो मैं आईआईएम वाले को हायर मैंने कर दिया, अगर मेरे पास कैपेबल या उसका जो बजट है वो देने के लिए रेडी हूं तो। लेकिन उसे मैं क्यों रखूंगा? अगर वो मुझे, मेरा जो मन चाहा काम है, मुझे बिजनेस लाके देगा तभी। आईआईएम से निकले हुए बंदे भी अगर मुझे बिजनेस लाके नहीं देंगे तो उसे मैं नहीं रखूंगा। अगर कोई इंस्टीट्यूट, अदर इंस्टीट्यूट से एमबीए करके आया हुआ बंदा है और वो प्रॉपर अगर वर्क कर रहा है, अपने काम के लिए डेडिकेटेड है, तो 100% आप रखेंगे। बड़े बड़े डिग्री, बड़े बड़े नाम से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप दिल से काम कर रहे हैं तो दुनिया आपको दिल से ही एक्सेप्ट करेगी, इस बात पे विश्वास कीजिए। हाँ,
थोड़ा बहुत वक्त जरूर लग सकता है, क्योंकि नदी के पानी के अंदर आप वो जो वुड होता है, जो लकड़ा होता है, उस लकड़े को अगर आप हाथ से दबा दो तो जरूर दबेगा, लेकिन उसका नेचर है तैरना। जब भी ये दबाव कम होगा वो अपने आप तैरना शुरू कर देगा। आज नहीं तो कल आपके नाम का डंका जरूर बजेगा। ये मैंने एग्जांपल दिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। आपको जितना कंफ्यूजन है, मैं आपको बताऊं, जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बॉलीवुड में एंट्री की तब क्या बड़ी बड़ी डिग्री या बड़े बड़े नाम या बड़ी बड़ी ब्रांड बॉलीवुड में नहीं थी, लेकिन लगे रहे, 18 साल लगे जरूर, लेकिन आज वो बॉलीवुड पे राज कर रहे हैं। जितना कठिन संघर्ष होगा सफलता भी उतनी ही सुंदर मिलेगी। तो इस चीज पे विश्वास कीजिए और काम को करते जाइए। ओके, एक और क्वेश्चन है सर, बुरी संगत से कैसे बचें? बुरी संगत से कैसे बचे? आप रूल्स बना सकते अपनी लाइफ के। कई कबार ऐसा होता है कि काफी टाइम हम ऐसा, अगर आपको एक्सेस दे या मैं आपको ऐसा बोलूं कि जो फ्रेंड के पास बुरी हैबिट है उस फ्रेंड को ही आप छोड़ दीजिए, लेकिन कभी कभार हम ये नहीं कर पाते। हम उससे इतने जिगरी, मतलब सालों से हम दोस्त है, सालों से हम फ्रेंड है, उसके पास बैड हैबिट है, आई नो वेरी वेल कि उसकी बैड हैबिट क्या है, 3 बैड हैबिट है जो मुझे एक्सेप्ट नहीं करनी और मैं उसे छोड़ना भी नहीं चाहता। उस वक्त आपको क्या करना है, अपनी लाइफ के रूल्स बनाने कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, ये इस चीज को मैं कभी टच नहीं करूंगा, इस काम को मैं कभी भी नहीं करूंगा, भले ही आपका फ्रेंड, आपका जिगरी भाईबंद वो कर रहा है। या तो बुरी संगत वाले दोस्तों को छोड़िए, अगर आप दोस्तों को नहीं छोड़ सकते तो अपनी लाइफ के रूल्स बनाइए कि ये मैं नहीं करूंगा, दैट्स ऑल। एक और क्वेश्चन है, ये 3 में से क्या बहुत अच्छा है, CS करना, CA करना या MBA करना? मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इसका आंसर मैं दूं उससे बेटर ये है कि आप अपॉइंटमेंट लीजिए, आप टाइम लीजिए और नीरू क्लासेस का, निरंजन भाई का आप जरूर से एक बार संपर्क करें, क्योंकि सिंगर के पास से अगर आप डांस की उम्मीद करोगे तो शायद इतना अच्छी तरीके से मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो बेस्ट एंड बेटर ऑप्शन इज दैट कि आप नीरू क्लासेस का संपर्क कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि वहां पे ही CA कीजिए, वहां पे भी CS की, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको निरंजन भाई से जरूर मिल जाएगा, तो आप रूबरू संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वी आर रियली वेरी सॉरी, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट 50-60 क्वेश्चन है। सो आई एम वेरी सॉरी, हम सब क्वेश्चंस नहीं ले पा रहे हैं ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, बट वी विल कीप ऑन, ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। एंड जैसा सर ने कहा, आप JCI से संपर्क कर सकते हैं, नीरू क्लासेस से संपर्क कर सकते हैं। आप अभी मेंबर हैं या नहीं है, नीरू क्लासेस में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आई एम श्योर आपको आंसर्स वहां से मिल जाएंगे। सो प्लीज स्टे विद इन टच विद अस, आपको सब आंसर्स मिलेंगे। अब थोड़ी 2 मिनट में देना चाहूंगा यहाँ पे हमारे JCI प्रेसिडेंट को, JCI सेनेटर किन्नरी हरियाणी। इन शॉर्ट, JCI क्या करता है स्पेशली बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, और उसमें कैसे जुड़े। मैडम, ओवर टू यू। थैंक यू नीरव भाई। इन શોર્ટ એક સેન્ટેન્સમાં મારે કહેવાનું હોય તો આજે જે અશોક સરે તમને જે માહિતી આપી ને એમાંનો જે રસ છે એ રસ છે કે JCI કામ કરે છે કમ્યુનિટી માટેથી લઈ અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડેવલપમેન્ટથી લઈ અને એટલી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટી આપે છે કે એ તમારા ઉપર ડિપેન્ડ છે કે એ ઓપોર્ચ્યુનિટીને તમે કેટલી લિવરેજ કરી શકો છો, કેટલી હદ સુધી જઈ શકો છો। નીરવભાઈ એક એક્ઝામ્પલ છે, લાઈવ એક્ઝામ્પલ, હું એક્ઝામ્પલ છું, અશોક સર એક્ઝામ્પલ છે। 3 પર્સનાલિટી તો અહીંયા જ છે અને ચોથી પર્સનાલિટી હમણાં જ અમારા મેમ્બર બનેલા સર છે કે જે એમનું પણ એક વિઝન એવું છે કે વિધાઉટ એની એક્સપેક્ટેશન સોસાયટીના અપલિફ્ટમેન્ટ માટે કંઈક ને કંઈક આપતા રહેવું અને અલગ અલગ રીતના આપતા રહેવાનું, સમય પ્રમાણે આપતા રહેવાનું। તો JCI એવી સંસ્થા છે કે જે 4 એરિયાની અંદર મેજોરિટી કામ કરે છે, જેમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડેવલપમેન્ટ, મેનેજમેન્ટ, બિઝનેસ એરિયા અને ઇન્ટરનેશનલ, અને એની સાથે અમે કમ્યુનિટી ઉપર ફોકસ કરીએ છીએ। કમ્યુનિટીમાં પણ જે પ્રમાણે સરે કીધું કે અમે એક વખત આપી અને છોડી નથી દેતા, પણ એમને જીવનભર શું કરી શકાય એવું વસ્તુઓ અમે એમને આમાં પ્રદાન કરતા હોઈએ છીએ। અને 18 થી 40 વર્ષના આની અંદર એક્ટિવ મેમ્બર બની શકે છે। એક્ટિવ મેમ્બર બન્યા પછી અલગ અલગ રોલ્સ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ તમે લઈ અને તમારી સ્કિલને વધારે ને વધારે શાર્પન કરી શકો છો। અને હું અહીંયા મારો નંબર પણ આપને આપું છું, મારો નંબર છે 9898998390। આઈ વિલ રાઇટ ઇટ ઓન ચેટ બોક્સ ઓલ્સો। તમને JCI નું મેમ્બર બનવું હોય તો તમે મારો પર્સનલ સંપર્ક કરી શકો છો અને JCI ના મેમ્બર બની શકો છો અને તમારા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડેવલપમેન્ટની આ જર્નીમાં અમે તમારી સાથે રહીશું। થેન્ક યુ, ઓવર ટુ યુ। थैंक यू सो मच मैडम। इन शॉर्ट,
जो चीज किताब के अलावा जितनी भी चीज आपको चाहिए वो किताबों के अलावा सब चीज आपको JCI में मिल जाए. So with that, thank you all. I take this opportunity as a chairman to present a vote of thanks. सबसे पहले thank you इन participants के लिए. एक टाइम पे we were 175 participants ने जो जुड़े थे, उन सब participants के संडे के दिन आप एक्टिव हमारे साथ हुए. आपने सब सुना और इतने सारे क्वेश्चंस, इट मींस आप इन्वॉल्व हो गए थे. So thank you all the participants. I would also like to thank Neeru Classes, who is the sponsor, जिन्होंने हमारा ऑलवेज जितने प्रोग्राम हैं उनको दिल से सपोर्ट किया है. लेट मी टेल यू, जब उनका हाँ होती है तो हमारा सेंचुरी पार्टिसिपेंट्स की ऑटोमेटिक लग जाती है. सो थैंक यू सो मच नीरू सर एंड द एंटायर क्लासेस. थर्ड, आई वुड लाइक टू थैंक आवर प्रेसिडेंट JCI सेनेटर किन्नरी हरियाणी मैडम. आप पूरा दिन 24 आवर्स, मैं तो कई बार कहता हूँ हंसते हंसते कि JCI को एक अवार्ड देना चाहिए कि सबसे फास्ट रिस्पॉन्ड करने वाले अगर कोई प्रेसिडेंट है तो वो ये हैं, और 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल होते हैं. तो ऐसे प्रोग्राम के लिए इनकी कभी ना नहीं होती. शी इज ऑलवेज प्रेजेंट. ऑल्सो बाकी JCI मेंबर्स और जितने हमारे सीनियर्स यहाँ पे जुड़े उन सबके लिए. एंड फाइनली हम भूल नहीं सकते आज के हमारे ट्रेनर, जो मैंने एक वर्ड यूज किया था, बहुत फेमस है. सो वो इतने फेमस हैं बिकॉज ऑफ हिज वर्क. तो उनका काम ही बोल रहा है और इतना फास्ट हमने उनका ग्रोथ और एक्सेप्टेंस देखा हुआ है, जो 22 कंट्रीज में रेगुलर उनके वीडियोस देखे जाते हैं. सो थैंक यू सो मच अशोक गुज्जर सर. इट इज अ प्लेजर बीइंग विथ यू. और लेट मी टेल यू, इतने हम्बल हैं कि एक फोन कॉल पे तुरंत हाँ, नथिंग, यानी आगे कुछ पूछा भी नहीं. So it shows your dedication in training. So thank you all for joining in this program. Today is the JCI National Day. So thank you all. And I, JC Dr. Neerav Majmudar, Vice President Training 2021 of JCI Baroda Alkapuri, in the capacity of the chairman, hereby adjourn the meeting. Thank you all. Thank you.